Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम। Okay, so we are formally beginning our session. So welcome to another round of our exciting workshops on entrepreneurship. In this session, we have partnered with the Millennium Universal College and is brought to you all by Circle Women Pakistan, whose mission is to advance women's economic participation and empowerment through innovative entrepreneurship, advocacy campaigns, and research. We develop and support the entrepreneurial and leadership capacity of women and youth in Pakistan to bring about the economic growth and social change. Some of the initiatives by Circle include Tech Karo, She Loves Tech, and Elevate. Circle believes that it is critical for Pakistan's progress to invest in youth, especially women, to build their confidence, capacity, and create platforms for them to bring their ideas forward. These workshops are supported by Frederick Naumann Foundation for Freedom, which aims to contribute to the enhancement of soft skills in the fields of entrepreneurship, business management, strategic communication, business leadership, and responsible citizenship. Today's session on entrepreneurship will be conducted by our very talented trainer, Mr. Uzair Osaf, who is a serial entrepreneur and had his first startup at the age of 23 in food industry, while simultaneously used by 101% in an year's time. He is a founder of communication consulting firm called I'm really sorry, my internet got disconnected in between. So over to you, Uzair. You can start with your workshop. All right, thank you, sir. Okay, everybody, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. मैं भी जरा अपना चेहरा दिखा दूँ. अच्छा जी. For the rest of you who are here, कोई पहली दरखास्त कि कैमरा ऑन कर लें, माइक ऑन कर लें, so that we are able to say hello to each other and are able to see each other's faces. जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं, अगर मैं ये दरख्वास्त कर सकूँ कि अपना प्लीज़ कैमराज ऑन कर लीजिए और अपने माइक्रोफोन्स भी ऑन करके चेक कर लें प्लीज़, ताकि पता लग सके कि हमें आपकी आवाज़ आ रही है या नहीं.
I know, Nigarish, that you can hear me, but I would like to see the faces of the people who are here. Please turn on your videos, अपने cameras please on कर लीजिए तमाम लोग. Also, meanwhile, Sahar, if you can quickly make me a co-host, or else I will not be able to do certain things that I would like to do. अच्छा जी, so meanwhile I think वो cameras on करने में ज़रा परेशानी का सामना है लोगों को. I don't know what, but we are hoping कि वो जल्द से जल्द on हो पाएंगे, ताकि हम एक दूसरे को देख सकें. Because whenever you are in a room, even in a physical room, you cannot be hiding your face and sitting in a room practically. And I would want कि हम इसको जितना realistic possible हो उतना realistic बना सकें, ताकि इसका फायदा हो सके और perhaps in vain ना हो, ऐसा ना हो कि हम दीवारों से बातें कर रहे हैं. Hence the request. So I'm gonna put it again to all of the participants, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, प्लीज अपने वीडियो कैमराज ऑन कर लीजिए ताकि हम आपको देख सकें, हम गुफ्तगू कर सकें और वो टू वे कम्युनिकेशन हो सके, इंस्टेड के मैं मुझे ऐसा लगे जिस तरह मैं सिर्फ दीवार से बात कर रहा हूँ. I think that's how I like it, and I'm sure that's how you're gonna make more value out of this conversation that we are about to have in the next an hour and 45 minutes. Thank you very much, Rehan, for showing your face and for coming here. तमाम बाकी लोगों से भी ये दरखास्त है, प्लीज टेक सम नोट्स, लेसन्स फ्रॉम रेहान, ही इज ऑलरेडी हियर. अच्छा जी, मेरा नाम उजैर औसाफ है. आई रन एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्यूब कंसल्टिंग है. क्यूब इज अ ट्रेनिंग एंड ओडी आउटफिट. हम इदारों के साथ जाकर उनके लोगों के साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं. एंड आई वाज told that this group of people who would be here are either aspiring entrepreneurs or perhaps some of you are already doing some kind of businesses in one way or the other. So before we actually jump into the session, and I think I would like this to be more conversation style instead of me just giving tools. उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों की पार्टिसिपेशन रहे, बिकॉज अगर वो नहीं होगी तो दिस सेशन वुड बी ऑफ नो यूज. So I would want to start from hearing from you perhaps. Do we have anybody in this group right now जो ऑलरेडी किसी ना किसी लेवल के ऊपर कोई ना कोई काम कर रहा हो अपना? चैट में बता सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं, however you like it. I'm waiting. कैसे बताना चाहेंगे? कोई है जो काम ऑलरेडी कर रहा है किसी भी फॉर्मेट के ऊपर, चाहे वो डिजिटल मीडिया के ऊपर कुछ क्रिएट करना हो, कंटेंट क्रिएशन हो और एनीथिंग परहैप्स, जो भी कोई भी इंसान ये कोई काम कर रहा हो.
ठीक है, so I think it's going to take some time. Talha, content creation करते हो, simple uploading my write-ups on Instagram, which is good. So Talha, what is because you are the first and perhaps the only one so far जिसने कुछ कहा है. So I want to know कि ये जो करते हो यार content creation, what is the purpose behind it? Do you want to perhaps, you know, create some business out of it? Do you want to sell something on your platform? What is it that you want to do? या ये बस फिलहाल ऐसे ही कर रहे हो, सोचा नहीं है कि क्या करना. And as Sahar rightly said to all of you, अपने mics आप unmute करके बोल सकते हैं. तला अपना mic unmute करके बोल सकते हो. Okay, so as I read, you are trying to create an online presence, and you just do it because you like to express yourself while doing it, which is good. And I think you do understand the fact कि digital presence को किस तरह से business model के अंदर बड़े सारे लोग अपने around देख रहे हैं कि वो convert कर रहे हैं. So you pick up any vloggers, any influencers, any kind of content creators online, वो somehow or the other ना कि सिर्फ brand endorsements के लिए का उनका एक revenue stream बनता है, बल्कि advertisement उनका एक revenue stream बनता है. Also a lot of them are launching their own product lines. तो कुछ हैं जो fitness products launch कर रहे हैं, कुछ हैं जो cosmetic products launch कर रहे हैं, कुछ हैं जो perhaps apparel industry के अंदर आ रहे हैं with their own brands. And because they already are there and they already have certain kind of influence on people, they are able to create good numbers and sales. Konen, I want to start my own e-commerce store with Shopify, all sorted, but payment gateway choose नहीं हो पा रहा because PayPal is trusted but not available. अगर PayPal ना use करो, sale decreases. That's true, Konen, and I think that is one big issue right now in Pakistan. Pakistan से operate करते हुए, what perhaps you can do is that see if you have some relative anywhere living in maybe UAE or anywhere else, और उनके साथ link up करके आप कुछ system बना सकें अपना जो PayPal के ऊपर काम कर रहा हो. Also see the kind of product that you are selling online on while you are building or perhaps have built your store on Shopify. देखो अगर किसी पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड करना चाहते हो फॉर पाकिस्तानी मार्केट, बिकॉज पाकिस्तानी मार्केट के लिए बिल्ड करने के लिए वहीं यहीं के लोकल तुम्हें पेमेंट गेटवेज चाहिए, पेमेंट गेटवेज की इंटीग्रेशन चाहिए. आई एम नॉट श्योर कि शॉपिफाई अलाउ करता है पाकिस्तान के लोकल पेमेंट गेटवेज, नॉट हो सकता करता भी हो, लेकिन अगर नहीं भी करता तो there are certain platforms like Shopify in Pakistan जिसके ऊपर आपने स्टोर्स क्रिएट कर सकते हैं. नीश जो है वो हेल्थ एंड ब्यूटी एंड पेट्स एक्सेसरीज है, व्हिच इज ओके. आई मीन पाकिस्तान के अंदर भी एक सर्टेन वेरी स्मॉल परसेंटेज एग्जिस्ट करती है. सो अगेन योर डिसीजन इफ यू वुड लाइक टू गो फर्दर विद दैट और नॉट. लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए तो यही क्रैक है दोस्त, के तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा कोई रिलेटिव, कोई ट्रस्टवर्दी, कोई दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर हो और उसके साथ तुम अपनी अकाउंट लिंकिंग अप कर सको to be able to process your PayPal account. Because Pakistan, I mean, let's hope and let's see कि वो कब PayPal वाला मामला जो है वो बेहतर हो पाता है. Having said that, perhaps हमारी जो यार आज की गुफ्तगू है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि, और गुफ्तगू मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मेरे पास कुछ चंद एक टूल्स हैं जो मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, बिकॉज आई लाइक to hear from people and talk about their problems instead of just blabbering about what you could have found in the books as well. किसी भी टाइम के ऊपर लगे कि मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, बहुत हल्के बोल रहा हूँ, you are please feel free to say that, ताकि हम उसको स्लो डाउन कर लें. कोई भी चीज ऐसी लगे जो समझ में नहीं आ रही हो, please feel free to ask. So yeah, we are gonna move forward with what start up with what I have in my mind and how I wanted to begin this. तो यार हम एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात कर रहे हैं. जरूरी है कुछ उसूल आज के दिन के लिए. ये जो अगला तकरीबन कोई 1.5 घंटा 1 घंटा 40 मिनट हमारा साथ गुजरना है वो मजेदार गुजर सके, मीनिंगफुल गुजर सके, तुम उससे कोई वैल्यू ऐड कर ले सको और मुझे भी वो वैल्यू एडिशन करने की फीलिंग आ सके. जरूरी है कि हम कुछ उसूलों का ख्याल रखें. उनमें से पहला जो है वो है आई वुड वांट यू टू बी 100%, और 100% की डेफिनेशन है कि आप वोकली पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपके कैमरास खुले हुए हो, मैं आपको देख सकूं, आप मुझे देख सके. सो प्लीज फील फ्री टू टर्न योर म्यूट ऑफ योर माइक्स
turn on your cameras as soon as possible. There are people who are sending messages कि वो थोड़ी देर में कैमरा ऑन करेंगे, so I'm waiting to see them. Number 2, cell phones या कोई और distraction प्लीज जरा कोशिश करें जल्द से जल्द साइलेंट पे कर दें या साइड पे कर दें. डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने की जरूरत है फॉर सम टाइम ताकि आपकी पार्टिसिपेशन यहाँ हो सके. And perhaps grab a pen and some papers to be able to write anything, any point that you find valuable, because ये जरूरी है. To start with, कारोबार की बात करते हैं तो बड़े सारे लोगों का ये कहना है हमारे आसपास, and we this generation perhaps जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मेरी understanding है that you are college going, university going, so our generation combined together, so my generation and your generation, I think this generation has been a generation of startups. कहना गलत नहीं होगा because there has been a lot of startups. We have seen a lot of funding, seed money, investments coming in to those startups. और बड़ा how do you call it, वो जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप का उसमें बड़ी तेजी आई है पिछले कुछ सालों में, 3-4-5 सालों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर 6 सालों के अंदर. उससे पहले आई थिंक डिजिटली लोग इतना नहीं सोचते थे और कोई भी कारोबार शुरू करना जो है रिलेटिवली जरा मुश्किल होता था. बट आई थिंक दिस जनरेशन एंड परहैप्स दीज पीपल राइट नाउ जो इवन इस वक्त अपने 30s के अंदर हैं या परहैप्स यंगर एज के अंदर हैं, these two lots have become that revolution or perhaps that's those generations जिन्होंने भी change लाया है और वो अपने कारोबार के ऊपर फोकस करते हैं, which is absolutely fantastic. And I think that instead of just looking for opportunities to work, why not create more opportunities for work for people, and in the long run जब आप अपना कुछ create करते हैं तो it gives a lot more value to you, not just in terms of finances but in other terms as well, non-monetary terms as well, versus perhaps let's say if you were to be working for some organization. So entrepreneurship का जो concept है वो ये कहता है कि यार आसान अल्फाज में, बिल्कुल आसान तरीन अल्फाज में, डेफिनेशन को भी छोड़ दें, जब एंटरप्रेन्योरशिप सोचते हैं तो अपना कारोबार आता है जहन के अंदर. एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जरूरी है कुछ चीजें, जरूरी है कि नया सोचें, जरूरी है कि प्रॉब्लम्स को सोचें, जरूरी है कि आप कोई ना कोई लोगों का मसला हल कर रहे हो ताकि लोगों का बिलीव बन सके आपके ऊपर और आपकी वो सेल्स जनरेट हो सके, वो परहैप्स प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप मार्केट में लेके गए हैं वो लोग उसका फायदा उठा सकें. कुछ पैराडाइम्स जो जरूरी है समझना, जिनके बारे में सुनना जरूरी है, बिकॉज ये वो पैराडाइम्स हैं या फिर वो बातें हैं जो हम भी सुनते हुए बड़े हुए हैं और आप भी सुनते रहते हो अपने आसपास के लोगों से. आयरॉनिकली इतनी सुनते हैं हम ये बातें कि हम में से भी बहुत सारे लोगों के इनके ऊपर बिलीव्स बन जाते हैं. वो बातें क्या हैं? वो बातें कुछ इस तरह से हैं that old is gold. We have been hearing this, old is gold, old is gold. And reality is that old is not gold. Old is obsolete. Old gold नहीं होता, old obsolete होता है. इसकी मिसाल देख लें, हमारे अंदर इनबिल्ट कर दी गई है कि जो पुरानी चीजें हैं वो संभाल के रखनी चाहिए, पुरानी चीजें संभाल के रखनी चाहिए. चीजों की बात हो रही है, लोगों की बात नहीं हो रही. Old people are gold, but old things are obsolete. Old ways are obsolete. Old processes are obsolete. तो पुराने चीजों से लगाव के ऊपर कंडीशनिंग की अगर बात करें तो अगर आप कोई घर में कोई नई चीज लेकर आते हैं, कोई पुरानी चीज हटाते हैं, उसकी जगह कोई नई चीज लगाते हैं, या गाड़ी में कोई पार्ट निकाल के नया पार्ट लगाते हैं, या कुछ भी नया खरीदते हैं पुरानी चीज को रिप्लेस करने के लिए, a lot of times, most of the times actually, हम जो पुरानी चीज होती है जिसको हमने रिप्लेस किया होता है उसको फेंकते नहीं है, किसी को देते नहीं है, और उसके पीछे हमारी थॉट ये होती है कि किसी दिन काम आएगा. Now ये जो किसी दिन काम आने वाली थॉट है, this is a result of our conditioning that old is gold. और रियलिटी है कि वो कभी भी काम नहीं आता, जब जरूरत पड़ती है तो याद नहीं आता, and eventually we end up going to the market buying another new product instead of using the old one. And that's how it is. That's how it is with anything. ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ? Because entrepreneurship की जब बात करते हैं तो हमसे जो पिछले लोग हैं वो certain mindset के लोग हैं, सर्टेन कंडीशनिंग के साथ बड़े हुए हैं, सर्टेन बिलीफ सिस्टम रखते हैं. जब आप उनके साथ कोई नया क्रेजी आइडिया डिस्कस करते हैं कि मैं हाइपोथेटिकली सेइंग कि प्लास्टिक के घर बना दूंगा और रिसाइकिल करूंगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे माइट जस्ट थिंक दैट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज रियली रियली क्रैप एंड इट इज नॉट डूएबल, और ये कैसा कारोबार है. So perhaps a lot of discouragement might come from their side,
but what we need to look into it is that जहां से वो आ रहे हैं, that's a place of a lot of old beliefs, जो अब exist नहीं करते, so वो obsolete हैं. A lot of times आप कुछ नया करने जा रहे होते हैं तो आपके अपने पेरेंट्स, आपके अपने खानदान वाले, आपके अपने करीबी लोग जो आपको वैल्यू करते हैं, वही आपको रोक रहे होते हैं. उसकी वजह ये है बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम देयर सर्टेन बिलीफ सिस्टम्स एंड दे परहैप्स don't know the kind of mindset that you have and the kind of plan that you have. So that number 2 is slow and steady wins the race. जो लोग ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं या आपके आसपास अगर कोई लोग कारोबार कर रहे हैं, slow and steady doesn't win the race anymore. This time is for fast and consistent. So it's not slow and steady, it's fast and consistent. Slow and steady रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे. यही सोचते रहोगे कि यार प्रोडक्ट बेहतर पहले बना लूं और बेहतर पहले बना लूं, पहले परफेक्ट बना लूं या सर्विस को पहले परफेक्ट बना लूं फिर लॉन्च करूंगा. You'll eventually be left behind. Somebody else is going to jump into the market and is going to capture the market. यही सोचते रहेंगे कि यार पहले वेबसाइट के ऊपर काम करने हैं या पहले मार्केटिंग के ऊपर क्या करने हैं. If you keep on thinking what you have been thinking, you will never be able to launch the product or service, whatever you wish to launch in the market. So slow and steady doesn't win the race. The times that we are in requires you to be fast and consistent. Slow and steady का दौर खत्म हो चुका है. Number 3 is पढ़ोगे लिखोगे. Most of the people have heard this. पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब. Now, जितने भी established businesses हैं पाकिस्तान के अंदर, you know, big giants of Pakistan right now, जिनको आप, you know, as an aspiration देखते हो, उनमें से जो ज्यादातर सेठ अफराद हैं वो कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है. इवन आज के दौर में, you know, बहुत ज्यादा पढ़ लिखना doesn't ensure that you're going to be successful in the business. But what ensures your success in the business is the skill set that you bring to the table and the quality of the product or the service that you have to offer to the market. So for example, मेरी networking skills कितनी अच्छी हैं इसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरी डिग्री से. मैं प्रेजेंट कितना अच्छा करता हूँ उसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरी डिग्री से. मैं प्रोडक्ट को फाइन ट्यून करने के लिए, सर्विस को फाइन ट्यून करने के लिए कितनी रिसर्च करता हूँ उसका कोई ताल्लुक नहीं है मेरी डिग्री से, बल्कि ताल्लुक ये है कि मैं कितना सीरियसली अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करने में और उसको बेहतर बनाने में टाइम लगाने के लिए तैयार हूँ. सो पढ़ोगे लिखोगे इज नॉट द पैरामीटर, इज नॉट द प्रीरिक्विजिट ऑफ डूइंग अ सक्सेसफुल बिजनेस. जरूरी नहीं है कामयाब बिजनेस के लिए आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो. बेसिक्स पता होने चाहिए, स्किल सेट लेकिन होना बहुत जरूरी है. बिजनेस डिमांड करता है सर्टेन स्किल्स, डिमांड करता है सर्टेन चीजों के अंदर आपकी कमांड, सर्टेन चीजों के ऊपर आपकी कमिटमेंट, वो जरूरी है चाहे वो किसी भी किस्म का बिजनेस हो, किसी भी चीज के ऊपर बिजनेस हो. एंड फॉर ऑल द पीपल हु आर हियर राइट नाउ, इफ आई मे आस्क यू कि व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू चैट के अंदर, यू नो, अगर आपने कोई कारोबार नहीं भी शुरू किया हुआ और आपकी यहाँ प्रेजेंस मुझे ये बता रही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दैट यू एटलीस्ट एस्पायर टू स्टार्ट सम काइंड ऑफ बिजनेस, यू नो, चाहते हैं कोई ना कोई बिजनेस शुरू करना. सो इन द चैट, यू नो, आई वुड वांट टू हियर फ्रॉम यू चैट के अंदर, व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू चैट में लिखते जाएं, यू नो, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वुड यू लाइक टू बिगिन. किस चीज का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, जस्ट दिस मच, किस चीज का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, या परहैप्स ये कि कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन अभी ये पता नहीं है किस चीज का कारोबार शुरू करना चाहते हैं. दिस मच इज आल्सो इनफ परहैप्स फॉर अ स्टार्ट. सो ताकि हम अपनी कॉन्वर्सेशन जो इसके बाद होने वाली है वो आपके उन रिस्पॉन्सेज के ऊपर बिल्ड अप कर सकें. मूविंग ऑन, यू कांट ट्रस्ट एनीवन. लोगों पे भरोसा नहीं करते, लोग बाहर धोखा देते हैं, बाहर लोग अच्छे नहीं है, ये हम हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं. लेकिन रियलिटी है दैट व्हेन यू स्टेप आउट and start doing something, some business, anything, जिसको entrepreneurship का label दिया जाता है. Natasha, great that you have recently started. Please मुझे जरूर बताना कि क्या शुरू किया है तुमने. So when you go out there in the business, when you start something out, जरूरी हो जाता है आपके लिए कि आप लोगों के ऊपर भरोसा करें. जरूरी हो जाता है आप लोगों पे भरोसा करें. क्यों? बिकॉज आप नहीं करेंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, और आपको थ्राइव करने के लिए जरूरी है कि लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें. हाउ डू यू डू दैट? व्हाई डू यू नीड टू हैव ट्रस्ट?
बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आपको लोगों से क्रेडिट भी चाहिए होगा, अ लॉट ऑफ टाइम्स आप भी लोगों को क्रेडिट दे रहे होंगे, अ लॉट ऑफ टाइम्स आप लास्ट मोमेंट के ऊपर लोगों को काम बता रहे होंगे करने के लिए, और वो आप चाहेंगे कि वो आपका काम करें. So you know it is one of those values जिसका एक्सचेंज बहुत ज्यादा जरूरी है सक्सेसफुल बिजनेस के लिए. रिदा का कहना है, I have a couple of ideas but not sure which one to pursue. I think रिदा now is a good time to talk about it chat के अंदर, या फिर perhaps अपना माइक ऑन करके, ताकि बाकी तमाम लोग भी सुन सके उसको. Because once you start throwing those ideas and sharing those ideas with us, I think we'll be able to talk more about it. और शायद तुम किसी I wouldn't say final नतीजे के ऊपर, लेकिन let's say you'd be able to at least short list. Nigarish, what products should we sell? What's the scope of the e-market? E-market का scope, I don't like the word scope, but yes, e-commerce has a great potential in Pakistan right now. It is only evolving. Corona times के अंदर more than 40% grow किया e-commerce ने पाकिस्तान के अंदर. It took a dip right after that जैसी markets खुली, लेकिन वापस से establish होना शुरू हो गया है. So ये जो एज ग्रुप है 18 साल से 35 साल तक के लोगों का, it is a sweet spot for any business that is planning to start in the e-commerce industry in Pakistan. Sweet spot में इसलिए कह रहा हूँ 18 से 35 का, because या तो आपका कंज्यूमर, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रहे हैं, या तो आपका कंज्यूमर इस एज ग्रुप के अंदर होना चाहिए, या फिर उसका कस्टमर इस एज ग्रुप के अंदर होना चाहिए. कंज्यूमर और कस्टमर के अंदर फर्क ये है, आसान एग्जांपल देके अगर समझाऊं तो सेरेलैक का कंज्यूमर छोटा बच्चा है, लेकिन उसकी कस्टमर जो है वो उसके पेरेंट्स है, उसका माँ है या उसका बाप है. तो कस्टमर इज समबडी हु ओनली बाइज द प्रोडक्ट और सर्विस फॉर समबडी एल्स, एंड कंज्यूमर इज समवन हु एक्चुअली यूजेस दैट प्रोडक्ट और सर्विस. तो जो भी लॉन्च कर रहे हैं वो इस एज ग्रुप को सामने रखते हुए करें, दैट इज 18 to 35, with the right marketing, with the right research on the product and service, with the right kind of delivery channels and partners, with the right kind of payment structures. I'm sure there's a lot of space to thrive. Rida Zehra is saying that as a student, I'm planning on designing various journals and sell them online. Rida, this is a very niche market, very, very, very niche, I would say. And I think, I wouldn't discourage it, but I would still say कि तुम्हें heavily research करने की जरूरत है कि तुम्हारे जो journals होंगे, इनके रेवेन्यू स्कीम्स या रेवेन्यू स्ट्रीम्स जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं. कि लोग जर्नल्स खरीदेंगे, एक वो रेवेन्यू स्ट्रीम है, उसके अलावा और कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस. रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू थिंक अबाउट दैट. Mustafa, I want to start a business but not sure what to start, but I have interest in starting to sell mobile phones, but sir, the main problem is the financial problem. How can we start with, for example, 10,000 rupees? Mustafa, 10,000 रुपए is a great amount. Why am I saying it? Because e-commerce की खूबसूरत बात ये है कि जरूरी नहीं है कि आप इन्वेंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें. सो लेट्स से 10,000 रुपए बिजनेस के अंदर, यार either you need to have money or you need to have the skill set. There are certain things जो आप खुद से कर सकते हैं अगर आपको स्किल आती है और आप उससे पैसा बचा सकते हैं. अगर स्किल नहीं आती तो फिर पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपको किसी को इंगेज करना पड़ेगा वो काम करने के लिए. मिसाल के तौर पे लेट्स से अगर आपको डिजाइनिंग का काम खुद आता है तो आप अपना फेसबुक पेज खुद बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज खुद बना सकते हैं, और उसके ऊपर ये जो 10,000 रुपए हैं इसमें से 5-6 हजार रुपए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लगा के यू कैन स्टार्ट. जैसे ही ऑर्डर्स ड्रॉप इन होना शुरू होते हैं आप मार्केट से प्रोक्योर करते हैं, बेस्ट रेट के ऊपर प्रोक्योर करते हैं ताकि आप उसको सेल कर सकें, मिनिमम प्रॉफिट रखें. मोबाइल मार्केट या परहैप्स इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट इज अ वेरी सैचुरेटेड मार्केट, जायंट प्लेयर्स आउट देयर. सो अगेन, जब भी बिजनेस शुरू कर रहे होते हैं तो इस बात का के ऊपर वर्किंग करना जरूरी होती है कि यार जिस भी प्रोडक्ट को हम बेचने जा रहे हैं, जिस भी मार्केट के अंदर हम टैप इन करने जा रहे हैं, उसका सैचुरेशन पॉइंट क्या है, उसमें प्लेयर्स कितने हैं, कितने बड़े हैं. Will I be really able to operate also the electronic market or the mobile phone market or the gaming market requires a lot of investment, क्योंकि आपको अपना नए से नए इन्वेंट्री चाहिए होती है. अच्छा, इसके अंदर गेम ये होती है कि मिसाल के तौर पे आपकी दुकान है, उसके ऊपर एक फोन है, हाइपोथेटिकली सेइंग वो 20,000 रुपए का मिल रहा है, किसी और दुकान के ऊपर वो 19,700 रुपए का मिल रहा है, किसी और दुकान के ऊपर वो 19,800 रुपए का मिल रहा है, और किसी और दुकान पे वो 21,000 का मिल रहा है. So customer, I think, is smart enough to see
ऑनलाइन प्राइस कंपैरिजन और 200-300 रुपए के फर्क से जो है ना वो परचेज डिसीजंस बदल रहे होते हैं. So you really need to be careful about, you know, while you are thinking about getting into the electronic market, mobile phone बेचना, etc., etc. Nigarish, very good question and a very, I think, tissues, sanitary napkins, adult diapers, ये वो चीजें हैं जो huge space. And I think this is a fantastic idea. Do not wait for it. Get your wheels rolling. जैसे भी launch करना चाहती हो, e-commerce store बनाना चाहती हो proper, वो बना लो. Shopify पे बनाना चाहती हो, Shopify पे बना लो. अगर internationally काम करना है, लेकिन उसके लिए मेहनत जरा ज्यादा है, procurement, listing, फलाने धमाके. I think there's a platform. I don't know आप लोगों ने नाम सुना या नहीं सुना, लेकिन मैं chat में उसका नाम type कर रहा हूँ, जो शॉपिफाई का पाकिस्तानी वर्जन है. फिशरी, स्पेलिंग जो है वो मैंने चैट में टाइप कर दी है. फिशरी अलाउ करता है कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर बना लें. पेमेंट गेटवेज लोकल लगाता है. वेबसाइट की तरह आपका इंटरफेस बन जाएगा, कस्टमर या यूजर इंटरफेस बन जाएगा. आपने खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कोई डिजाइन की परेशानियों में नहीं पड़ना, क्योंकि वहां जो टेम्पलेट्स अवेलेबल है यू कैन यूज दैट एज इट इज. I found a factory for it, but it was all defected. Okay, Nigarish, do not go for the factory in the start, because factory आपको सिर्फ तभी बेहतरीन pricing या बेहतरीन product दे सकती है जब आपका अपना quality control department बना हुआ हो और आप हर चीज को check कर सकें. और दूसरी बात ये, आप massive किस्म की quantities के अंदर ले रहे हो. What I would recommend is that instead of going to a factory, go to a दुकान जो wholesale में बेचता है. होलसेल की दुकान रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर भी बनी हुई है. होलसेलर जो है वो मेन मार्केट सदर टाइप जगह के ऊपर भी है. करना आपने क्या है, हर प्रोडक्ट का एक एक पीस उठा के लेकर आना है, उसकी पिक्चर्स लेनी है, व्हाइट बैकग्राउंड व्हाइट बेस के ऊपर, उसका डिस्क्रिप्शन नाइसली रिटन. तुम्हारी यूएसपी, लेट्स से, यू नो, एंड लेट मी बी वेरी ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट इट. एट वन पॉइंट इन टाइम, लेट्स से a month back, I was thinking of getting into the baby diapers business online. very honestly, and this is a huge market too. तो मैं अपनी यूएसपी क्या बनाने के लिए सोच रहा था, आई एम गोना शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. मैं अपनी यूएसपी बनाने के लिए सोच रहा था दैट somehow I want to deliver the product on the doorstep of the customer, either on the same day or the next day. Now, be it diapers, be it adult diapers, be it sanitary napkins, be it tissue papers, be it wipes, be it anything to do with सफाई, face towels, ये जब आपको चाहिए होते हैं, आपको तभी चाहिए होते हैं. You need to have them foreign से. So you can wait, let's say a few hours, maybe one day or maybe a night, लेकिन आप 2, 3, 4, 5, 6 दिन इंतजार नहीं कर सकते. इससे तो बेहतर है कि आप जाके दुकान से खरीद के ले आएंगे. So huge market and great potential. I would want के आज से कल से क्या, आज से काम शुरू कर दो. And I perhaps am open to work in this industry as well. So I actually am looking for people who would want to partner with me and would want to work in this industry, because ये बहुत बड़ी market है and has a lot of potential. Kunain, I will probably go for affiliate marketing. I'll market ebooks क्योंकि उनकी इन्वेंट्री वैल्यू नहीं होती, कमीशन ज्यादा होता है. बिल्कुल सही बात है कुनैन. affiliate marketing is a great concept, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि affiliate marketing से शुरुआत जरूर करो, लेकिन affiliate marketing फिर तुम्हारा probably side hustle बन जाएगा, because your main business has to be something else, my friend. Your main business has to be something else. बुक्स की या किसी भी चीज की affiliate marketing में मसला ये है कि बहुत सारे मूविंग पीसेस हैं. मूविंग पीसेस में क्यों कह रहा हूँ कि a lot of times, let's say कोई बुक शॉर्ट हुई भी है, इंपोर्ट रुकी हुई है, नहीं मिल रही मार्केट के अंदर, अब आप दबा के जो है वो काम तो करने में लगे हुए हैं, मार्केट करने में लगे हुए हैं. आपके जरिए से लोग आपकी पोस्ट देख के या आपकी बातें सुन के लोग उस प्लेटफॉर्म पे भी जा रहे हैं, लेकिन वो परचेज नहीं हो पा रही. तो आपके लिए भी बुरा है और उस ब्रांड के लिए भी बुरा है. I know affiliate marketing, passive income का concept है. So keep it passive. You cannot be relying on just affiliate marketing. It's a great concept. It's a great side tool. Side hustle के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन main जो business है वो कुछ और होना चाहिए.
परचेज नहीं हो रही, टारगेटिंग कर सकते हैं विद पोजीशन ऑफ द ईमेल्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कस्टमर साइड को, आई नो तुम टारगेट कर सकते हैं थ्रू ईमेल्स, टारगेटेड ईमेल्स भेज सकते हैं, आई नो ऑल ऑफ दैट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके लिए, जिस प्रोडक्ट के साथ तुम्हारी एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, प्रोडक्ट और सर्विस, उसकी अवेलेबिलिटी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो वो तुम्हारा हार्ड कोर नहीं हो सकता, इट कैन बी योर साइड हसल बट कैन नॉट बी योर हार्ड कोर। फॉर एग्जांपल इस वक्त इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर की बैंड बजी हुई है ना, मतलब इट्स बिकमिंग सो डिफिकल्ट राइट नाउ टू फाइंड इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, कभी कुछ मिल रहा होता है, कभी कुछ नहीं मिल रहा होता। a few days back I was looking for a book और वो जान अजाब में बनी हुई थी, वो किताब कहीं अवेलेबल नहीं थी। लिबर्टी को मैंने 2 दफा रिक्वेस्ट की, 3 दफा रिक्वेस्ट की, वो बुक आज तक अवेलेबल नहीं हुई है। I was looking it for somebody, some wanted to give the book to somebody, और वो इसलिए मैं तोहफा देना चाहता था बिकॉज वो इंसान भी जो है बहुत दिन से वो किताब ढूंढ रहा था और उसको नहीं मिल पा रही थी। एनीवे, सो कमिंग बैक टू इट, सो बिजनेस डायनामिक्स के अंदर कुछ चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, एंड कीप दीज इनपुट्स कमिंग, कीप दीज आइडियाज कमिंग। जो भी आइडिया के ऊपर अगर आप चाहते हैं फर्दर इन डेप्थ डिस्कशन करना तो हम उसको कर सकते हैं। नंबर और परहैप्स द नेक्स्ट पैराडाइम इज, जो हमें अक्सर सुनने को मिलता है, सब कुछ नहीं बताते। अब ये जो सब कुछ नहीं बताने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये पुराना हो गया यार। टिल द टाइम आप लोगों को नहीं बताएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको पार्टनरिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। टिल द टाइम यू आर नॉट ओपन अबाउट व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अचीव आउट देयर, आपको ना वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, ना पार्टनरिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ना वैल्यू प्रोपोजिशन मिलेगी, और आप अकेले ही जो है वो सारा बोझ उठाते चलते चले जाएंगे। सब कुछ नहीं बताते कि एक एंटायर एग्जांपल मैं अभी सामने रखता हूँ। फॉर एग्जांपल, I just said that I was thinking of getting into the diapers market online business, but my USP perhaps would have been कि मैं ओवरनाइट डिलीवरी करता, कुछ भी करता, ओवरनाइट डिलीवरी करता, लॉस में बेचता, ओवरनाइट डिलीवरी करता शुरू के अंदर, बट ओवरनाइट डिलीवरी जरूरी थी। और एक टाइम आता जब कस्टमर जो है वो मुझे प्रीमियम प्राइस पे करने के लिए तैयार हो जाता। क्यों? क्योंकि मैं अगले 12 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर डिलीवर कर रहा हूँ प्रोडक्ट। सो सब कुछ नहीं बताते इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये बहुत पुरानी बात है। अब आप सब कुछ बताते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं बताते हैं तो आपको पार्टनर्स नहीं मिलते, आपको अपॉर्चुनिटीज आपकी लिमिटेड हो जाती हैं, आपको नहीं पता कौन बंदा क्या वैल्यू ऐड कर सकता है आपके काम के लिए या आपकी उस ख्वाहिश के लिए जो आप रखना चाहते हैं। सो या बीट योर कॉम्पिटिशन। बात करते हैं कि यार कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, आगे निकलना है, आगे बढ़ना है, मेरा प्रोडक्ट, मेरी सर्विस, कोई और का प्रोडक्ट ऐसा ना हो, ऐसा कुछ नहीं। मेरा ये मानना है कि कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने से बेहतर है वो है कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी एक ऐसी सर्विस उठाएं जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर चल रही है। क्यों? क्योंकि आपको लोगों को अब एजुकेट नहीं करना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट का ये फायदा, लोगों को पहले से पता है, आपने सिर्फ उनको ऑल्टरनेट देना है। ऑल्टरनेट के अंदर क्वालिटी बेहतर कैसे होगी, प्राइस कैसे कम होगी, वैल्यू कैसे ज्यादा ऐड करेंगे, कस्टमर सर्विस के ऊपर काम क्या होगा, डिलीवरी चैनल कैसे इम्प्रोवाइज करेंगे, पेमेंट रिटर्न पॉलिसीज क्या होंगी, एक्सचेंज पॉलिसीज क्या होंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपके यूएसपी पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन इट इज ओके टू कम अप विद द सेम प्रोडक्ट, इट इज ओके टू कम अप विद द रेपिटेटिव प्रोडक्ट, जस्ट मेक श्योर कि एंट्री जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना हो उस प्रोडक्ट या उस सर्विस को लेकर मार्केट के अंदर, और आप आसानी के साथ शुरुआत कर सकते। देयर इज नथिंग लाइक कंपटीशन राइट नाउ। इस वक्त दुनिया या बिजनेस कोलैबोरेटिव मॉडल के ऊपर चल रहा है, कोलैबोरेशन के ऊपर चल रहा है। अगर कंपटीशन की बात है तो जो बिग जायंट कंपनीज हैं वो भी फिर कंपटीशन के अंदर ही पड़ी रहे, वो कभी कोलैबोरेशन ना सोचें। और मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, जुबली लाइफ के नाम से एक इंश्योरेंस कंपनी है, एंड आई एम श्योर आपने एक और नाम सुना होगा कि ईएफयू लाइफ के नाम से एक और कंपनी है। ईएफयू लाइफ और जुबली लाइफ दोनों लाइफ इंश्योरेंसेस बेचते हैं। कहने को दोनों कंपेटिटर्स हैं एक दूसरे के, लेकिन दोनों ने मिलकर एक नई पॉलिसी लॉन्च की है। सो दे हैव कोलैबोरेटेड टुगेदर टू बी एबल टू रीच टू अ न्यूअर सेगमेंट ऑफ द मार्केट, टू बी एबल टू टेक देयर न्यू प्रोडक्ट टू द मार्केट। और दोनों ऑल्दो कंपेटिटर हैं, लेकिन दोनों ओपन है यार साथ मिलके काम करने के लिए। सो देयर इज नथिंग लाइक कंपटीशन, ये दुनिया कोलैबोरेशन की है यार। कोलैबोरेट करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, कोलैबोरेट करते रहोगे, तरक्की करते रहोगे। कंपटीशन में पड़े रहोगे कि मैंने आगे निकलना है, दूसरे को नीचे दिखाना है, तो यू विल स्टे इन द स्मॉल फाइट, यू विल बी अ पार्ट ऑफ। Natasha, this is a misconception that entrepreneurship is innovation. Absolutely. Entrepreneurship is not about innovating a product or service.
but entrepreneurship can be about innovating the ways you are taking the product or service to the customer. You know, उसको वैल्यू उसके अंदर कैसे ज्यादा ऐड करनी है, इस बारे में तो इनोवेट करो. मार्केटिंग कैसे ज्यादा होगी, उस बारे में तो इनोवेट करो. कस्टमर एंगेजमेंट ऑनलाइन कैसे करनी है ज्यादा, उस बारे में इनोवेट करो. पाकिस्तानी मार्केट को कैसे एजुकेट करना है, उस बारे में इनोवेट करो. अपने ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कैसे करवाना है अपने पोटेंशियल कस्टमर का, उस बारे में इनोवेट करो. बट नॉट नेसेसरली योर प्रोडक्ट और द सर्विस, because it becomes even more difficult for you to educate the client. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल और दे देता हूँ कि प्रोडक्ट को इनोवेट करने की जरूरत नहीं होती है. लॉट ऑफ टाइम्स आप इनोवेट करते हैं तो मार पड़ती है मार्केट में. फॉर एग्जांपल, मार्टिन डाउ के नाम से एक बहुत बड़ी कंपनी है फार्मास्यूटिकल. इट्स अ ग्लोबल कंपनी. इट हैपेंस टू बी वन ऑफ माय क्लाइंट्स जिनके साथ मैं काम करता हूँ. अभी जब कोविड-19 वाली सिचुएशन हुई, दबा के कंपनीज ने सैनिटाइजर्स और मास्क के ऊपर कंपनीज ने और लोगों ने पैसे कमाए. दसियों किस्म के सैनिटाइजर्स और मास्क जो है वो मार्केट के अंदर थे और आज भी अवेलेबल है. इस सिचुएशन को देखते हुए, बैंड वैगन इफेक्ट को देखते हुए, हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज पाकिस्तान में है, उन्होंने भी बहुत सारी कंपनीज ने अपने सैनिटाइजर्स बनाए और सैनिटाइजर्स लॉन्च किए. और इसी बैंड वैगन के अंदर मार्टिन डाउ भी शामिल हुआ. मार्टिन डाउ बाय द वे पाकिस्तान की टॉप 4 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से एक कंपनी है, in terms of size, in terms of magnitude, in terms of business, etc., etc. Anyways, so they took this bandwagon and they launched a hand sanitizer. अब मसला ये था कि मार्केट में जितने भी हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल थे वो मेजॉरिटी या तो ट्रांसपेरेंट स्लैश वाइट कलर के थे, या ब्लूइश शेड के थे, एक्वा शेड के थे, या पिंकिश शेड के थे. इन्होंने हैंड सैनिटाइजर लॉन्च किया जो येलो कलर का. Now for some reason this was a fantastic hand sanitizer in terms of quality, लेकिन for some reason because of the packaging or because of the color of the product, because of this specific innovation in the product, market में शदीद तौर पे फेल हुआ and eventually they pulled back all the product from the shelves कि यार नाम खराब हो रहा है, बिक तो रहा नहीं है, मार्केटिंग के ऊपर हम खर्च कर रहे हैं और nobody is buying it, so गायब कर दो मार्केट से इसको ताकि लोग भूल जाए. Classic example of doing bila wajah ki innovation in the market. Okay, Ehsan, what skill do we need for good marketing? Of course you need to have the marketing skills for good marketing, but also you need to understand the psychology of the people, also you need to understand the demographics, also you need to understand the kind of. तो इसके ऊपर कोई भी बिजनेस लॉन्च करने से पहले ये समझना जरूरी है कि मेरी मार्केट क्या है, उसके बिहेवियर्स कैसे हैं, किन हालात में खरीदती है, कितने पैसे कमाती है ऑन एवरेज, क्या एज ग्रुप है, खवातीन ज्यादा खरीदेंगी, मर्द हजरात ज्यादा खरीदेंगे. Who is it that's gonna buy my product? If you've got to know about them as much as possible to be able to generate and create exclusive and effective marketing campaigns. और जितनी इफेक्टिव या होंगी उतना ज्यादा आपका कन्वर्जन होगा या रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट होगा. Next is धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का. Now this talks about a lot about not taking risks and following the same patterns, same procedures, same तरीकेकार जिस तरह से हमारे पुराने लोग या बड़े लोग फॉलो करते हुए आए. So for instance, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का कहते हैं कि यार ये काम मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी चले जाओ उससे भी चले जाओ. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब कर रहे हो और आप अपने किसी दोस्त को बताते हैं कि यार मैं कारोबार शुरू करने की सोच रहा हूँ, तो बोलेगा कि ये मत करना वरना ये नौकरी से भी जाएगा और कारोबार से भी जाएगा, हार जाएगा, मार पड़ेगी, कारोबार में फ्लॉप हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ऑल्दो किसी भी कारोबार के करने के लिए रिस्क ना लेना इज अ फर्स्ट स्टेप टू फेलियर. सो रिस्क तो लेना पड़ेगा बॉस. रिस्क किस लेवल का है? एजुकेटेड है, प्लान्ड है, कैलकुलेटेड है, ये तमाम चीजें आपके ऊपर डिपेंडेंट है और जरूरी हैं. हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, निगारिश बिल्कुल सही बात है, लेकिन कारोबार में कहते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है. तो अन्यवार रिस्क भी नहीं लेना, पागल भी नहीं हो जाना, बिल्कुल अंधे भी नहीं हो जाना, और क्या बहुत ज्यादा डरना भी नहीं है कि यार करूं ना करूं. कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है. ये समझना जरूरी है कि यार जब तक ये काम करूंगा नहीं तब तक चीजें बेहतर होंगी नहीं, और बगैर रिस्क लिए कारोबार शुरू किया जाता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई स्टार्टेड माय दिस कंपनी, कंसल्टिंग कंपनी,
about 2 साल पहले. So I was doing a job before this, and the kind of perks and salary that I was enjoying, the kind of financial perks, the kind of influence that I had on the people, the kind of reach that I had, the kind of work that I was doing, वो बड़ा मजेदार था. And I think the kind of perks and salaries and everything, financial benefits जो मैं enjoy कर रहा था उस वक्त, वो बड़े मजेदार थे, बड़े lucrative थे, and I think बड़ा मुश्किल था उसको बाय बाय कहना. लेकिन my need to have something of my own, my need to start of something of my own was, I think, much more bigger than all those ayashi, all those astania, all those comfort. And I think in the beginning phase, जो किसी भी business के लिए बड़ा troublesome होता है, बहुत ज़्यादा turbulent होता है, I think उस time के अंदर आपको ये जो आपका why होता है, जो आपका cause होता है, जो आपका reason होता है कोई भी कारोबार शुरू करने का, वो बड़ा strong होना जरूरी है, because वो आपको believe देता है to keep on going and going and going till the time your business reaches the stage जहाँ वो आपको एक regular perhaps revenues generate होना शुरू हो जाते हैं, और regular income generate होना शुरू हो जाती है for the business, and you perhaps are now in a position कि आप ये सोच सकते हैं कि यार now I can pay myself from this business. Rida, is food market a good idea? Because I keep hearing कि पाकिस्तान में तो हर कोई रेस्टोरेंट खुलकर बैठ जाता है. If we have a greater vision for the company, then what's the problem? Rida, I think great question. Food market बिल्कुल सैचुरेट बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फूड मार्केट के अंदर भी इतने सारे एरियाज हैं यार, जरा सोचने की जरूरत है. मिसाल के तौर पे अगर मुझे अच्छा क्वालिटी का हाइजीनिक जूस पीना है, फ्रेश जूस पीना है, तो मेरे पास ग्रीनो के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आज भी कराची में. मिसाल के तौर पे जितने भी फूड जॉइंट्स खुल रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड बर्गर्स, पास्ताज एंड पिज्जाज. तो ये 2-3-4 चीजें हैं जिसके ऊपर फोकस है, लेकिन एक बहुत बड़ी मार्केट है जो हमारे लोकल खाने की है, जो साउथ इंडियन खाने की है, जो मैक्सिकन खाने की है. So yeah, I mean there's a huge potential out there. खाना लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, कपड़े पहनना लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, इलाज कराना लोग कभी नहीं छोड़ेंगे, दवाएं खाना लोग कभी नहीं छोड़ेंगे. ये 4-5-6 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हालात मुल्क के कितने भी खराब हो रहे हो, people are not going to stop investing money in this direction. So food market is always great. I have been into the food business for about 3 years, 3.5 years, yes. And I still do it at times on the side, and there's huge potential, huge upside, लेकिन well planned हो, और देखने की जरूरत होती है कि आप ज्यादा रेवेन्यू पुट इन ना कर रहे हो बहुत ज्यादा, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल हिट ना मिले. Food we sell here is saturated, not the food market. Is anyone remember the pizza price came, it blew up, and a lot of people profited from it. Of course यार कुनैन बिल्कुल सही बात है, पिज्जा प्राइस जब आए तो उसने मार्केट को ब्लू अप कर दिया था. सिमिलरली कोई एक वो प्रोटीन शेक वाले अंकल मशहूर हो गए थे हुसैनाबाद के ऊपर, उनके पीछे लाइन लग गई थी लोगों की, लोग घंटों घंटों खड़े होकर इंतजार कर रहे थे. I think with the kind of platforms, especially for the food market that we have in Pakistan, SOT and Karachi Food Diary, it has become really easy to kind of reach to the market, reach to your potential consumer. बिरयानी वाले हैं दबा के मशहूर हो रहे हैं, वो नल्ली नहारी and what not of फरहान बिरयानी. So idea ये है कि with the right amount of planning in the market, planning in the marketing strategy, आप बड़ी जल्दी लोगों को रीच कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि टेस्ट के ऊपर काम करने की जरूरत है. सिमिलरली आजकल एक और चीज बड़ी मशहूर हुई है बहादुराबाद के ऊपर, वो थर्स्टी के नाम से कोई लिम्का मिल रहा है ना. उसकी कहानी ये है कि वो 60 या 80 रुपए का देता है, आई डोंट नो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने गुजरते हुए देखा है. क्रेजी अमाउंट ऑफ रश है, लोग लाइन लगा के खड़े हुए, क्या पीना है, लिम्का पीने के लिए आए, सोडा फ्लेवर्ड पीने के लिए आए. उसी के बराबर में एक जूस वाले की दुकान है, वो खाली है. ओके, नाउ जहाँ फ्रेश जूस मिल सकता है, जहाँ हेल्दी चीज मिल सकती है, लोग वहां नहीं जा रहे, लेकिन लिम्का पीने जा रहे. वो जो बंदा है जिसने वो शॉप खोली है, जिसका वो स्टार्टअप है, उसकी स्टोरी है कि वो हैदराबाद में रहता था और हैदराबाद में उसकी दुकानें थी, 1 या 2 स्टॉल थे लिम्का के, लिम्का ड्रिंक के. एंड देन ही केम टू कराची, एंड इस वक्त उसका जो रेवेन्यू है वो
ऑन एवरेज वो नेट कर रहा है, और मुझे ये पता है इसलिए क्योंकि उसका बिल्कुल करीबी चचाजाद भाई जो है वो मेरा पार्टिसिपेंट था परसों एक ट्रेनिंग के अंदर, और मेरी उससे अच्छी डिस्कशन हो रही थी। ऑन एवरेज महीने में उसका नेट इनकम जो है दैट्स क्लोज टू 1.5 1.4 मिलियन। ये मैं कह रहा हूँ नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब है कि तमाम एक्सपेंसेस पे कर दिए, दैट्स द टेक होम एवरी मंथ। उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई थिंक कोई 24-25 लाख रुपए थी, जिसमें मशीन और दुकान और ब्रांडिंग एंड ऑल ऑफ इट। तो लेट्स से अबाउट 25 लाख की इन्वेस्टमेंट एंड अबाउट 1.3 1.4 मिलियन अ मंथ नेटिंग। इसका मतलब है कि 2 से 2.5 महीने के अंदर उसने जो इन्वेस्टमेंट की है वो बाहर होगी। नाउ दिस इज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो फिजिकल स्टोर खोलने के लिए या फिजिकल बिजनेस चलाने के लिए ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ज्यादा, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस के लिए यू डोंट नीड टू हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। धोबी का कुत्ता हो गया, छोटा मुंह बड़ी बात, देयर इज नथिंग लाइक छोटा मुंह और बड़ी बात कि हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि अभी छोटे हो। छोटा होना या एक्सपीरियंस में कम होना डजंट नेसेसरली मीन कि आप बात गलत करेंगे। हमारे बड़ों को भी ये समझने की जरूरत है और हमें भी इस बात को समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि अगर मैंने दुनिया में वक्त अभी इतने ज्यादा नहीं लगाया है तो मेरा जो एक्सपीरियंस है या मेरा जो सजेशन है वो इन दी एयर होगा और बेकार होगा। तो देयर इज नथिंग लाइक छोटा मुंह और बड़ी बात। द नेक्स्ट मॉडल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज डिमांड्स, कॉन्स्ट्रेंट्स एंड चॉइसेस। और ये याद रखना, DCC, डिमांड्स, कॉन्स्ट्रेंट्स और चॉइसेस। थोड़ी देर पहले अभी यू नो इन्होंने बात की थी फॉर द मार्केट ऑफ अडल्ट्स। यस, निगारिश, तुमने कमेंट किया था कि तुमने फैक्ट्री भी ढूंढ ली थी लेकिन वो तमाम चीजें जो वो डिफेक्टेड थी। अब देखो, डिमांड्स, कांस्टेंट और चॉइसेस का जो मॉडल है ना, वो ये कहता है कि किसी भी बिजनेस के अंदर आपसे एज अ बिजनेस सर्टेन डिमांड्स होती हैं, ओके, जो आपने फुलफिल करनी होती है। मिसाल के तौर पे KFC से सिर्फ ये डिमांड नहीं है कि वो चिकन और बर्गर बेचेगा, कस्टमर की सिर्फ ये डिमांड नहीं है कि वो चिकन और बर्गर बेचेगा, बल्कि ये भी डिमांड है कि वो गर्म भी होनी चाहिए, वो फ्रेश भी होनी चाहिए, फ्राइज भी अच्छे होने चाहिए, ड्रिंक भी ठंडी होनी चाहिए, सो एंड सो फोर्थ। सिमिलरली, मिसाल के तौर पे आप ऑनलाइन डायपर्स बेचते हैं या अडल्ट डायपर्स बेचते हैं, सैनिटरी नैपकिन बेचते हैं, तो कस्टमर की ये डिमांड है आपसे, सिर्फ ये डिमांड नहीं है कि आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल, बल्कि ये भी डिमांड है कि उसके मल्टीपल ब्रांड्स एंड देन मल्टीपल साइजेस एंड देन मल्टीपल SKUs, दोनों चीजें अवेलेबल हो। ओके, दोनों चीजें अवेलेबल होना जरूरी है। उसकी वजह ये है कि अगर नहीं होंगी अवेलेबल तो यू आर ओनली गोइंग टू स्ट्रगल एंड ओनली गोइंग टू लूज द कस्टमर। कस्टमर साइंसेस या कस्टमर सर्विस के पीछे जो रिसर्च है वो ये कहती है कि एक खराब एक्सपीरियंस जो होता है ना किसी एक कस्टमर का, वो अपने साथ 7 कस्टमर्स को खराब करता है, 7 लोगों को बताता है अपने बुरे एक्सपीरियंस के बारे में। एंड दिस, जिस दौर में हम हैं जिंदा इस वक्त, इन द टाइम्स ऑफ डिजिटल मीडिया, इट इज बिकम सो इजी टू स्प्रेड द नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ। तो कोई भी नेगेटिव कहीं पोस्ट आता है, कहीं कोई स्टेटस आता है या कहीं कोई कमेंट आता है किसी भी ग्रुप के अंदर, तो वो वायरल हो जाता है एंड पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। सो यू रियली हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट कि कस्टमर को नाराज ना कर दें। यही वजह है कि हम देखते हैं कि केक वाले या ब्राउनीज वाले या ये जो होम शेफ्स हैं या जो रेस्टोरेंट्स हैं, अगर किसी कस्टमर का एक्सपीरियंस बुरा हो जाता है तो उसको अकोमोडेट करने के लिए उसको मीठे भेज रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं, कार्ड भेज रहे हैं, वाउचर्स भेज रहे हैं, व्हाट नॉट। तो दे आर नॉट क्रेजी दैट दे आर डूइंग इट, बट दे आर डूइंग इट फॉर द सेक कि यार ये एक है और ये 7 लोगों को रोक देगा हमारे पास आने से। ओके, सिमिलरली ऑन काउंटर एक अच्छा एक्सपीरियंस कस्टमर का, सो अगर कोई एक ऐसा कस्टमर है जिसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, वो जाके 3 लोगों को बताता है आपके बारे में। नाउ डू यू सी द डिफरेंस? अच्छा एक्सपीरियंस 3 लोगों को बता रहा है और बुरा एक्सपीरियंस 7 लोगों को बता रहा है। इमेजिन दैट इन द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट वी लिव इन, people
नेगेटिव सेल्स, एंड दैट्स हाउ इट इज। इसलिए अपने न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देख लें, नेगेटिव ही बिक रहा है। So people like to believe in negative. People like to spread the negative. There's a very low chance कि लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें लिखेंगे। Rida, that way customers can exploit business as well. I have seen people give bad reviews on purpose to get free goods. Absolutely right. बिल्कुल सही कह रही हो रिदा, ऐसा बिल्कुल होता है। लेकिन as a business you have to be smart enough to gauge and understand कि ये जो रिव्यू है इसके पीछे रीजन क्या है, और क्या आप उन रिव्यूज को फैक्ट्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस रिव्यू को जाके काउंटर कर सकते हैं फैक्ट्स के साथ। फैक्ट ये नहीं होता कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और हमने तो अपने लोगों को बड़ी ट्रेनिंग की है, फलाना और धमाका, और आपका ऑर्डर कैसे लेट हो गया। बल्कि फैक्ट ये होता है कि अकॉर्डिंग टू आवर कैमरास रिकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आवर सीसीटीवी कैमरा, आप हमारे आउटलेट के ऊपर इतने बजे आए थे, आपने इतने बजे ऑर्डर पंच किया था, ये रही ऑर्डर की रिसीट की तस्वीर, इतने बजे आपको ऑर्डर आपके हैंडओवर कर दिया गया था, उसके बाद आपने ये काम किए, और उसके इतनी देर के बाद आपने ऑर्डर कंज्यूम किया, तो डेफिनेटली ऑर्डर जो था वो ठंडा ही हो गया था और खराब ही हो गया था। तो यू नो, विद लेजिटिमेट रीजनिंग अगर आप काउंटर कर सकते हैं, नथिंग लाइक इट। बट यस, द वर्ल्ड दैट वी आर इन, कस्टमर इज पावरफुल। आप और मैं जब कस्टमर की पोजीशन में होते हैं किसी भी चीज को लेके, तो हम भी ऐसे ही कर रहे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हम एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, लेकिन हम इक्वली कंप्लेन कर रहे होते हैं। एंड आई थिंक हमें लेट्स से एज एंटरप्रेन्योर्स ये करने की जरूरत है कि ये लेंस उतारने की जरूरत है। देखो, अगर मैंने लाल रंग का चश्मा लगाया हुआ होगा ना, तो मुझे दुनिया लाल रंग की नजर आ रही है। अगर मैंने ये चश्मा लगाया होगा ना कि कस्टमर सारे ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये चश्मा लगाया होगा ना कि जितने भी लोग कंप्लेन कर रहे हैं एक्सप्लॉइट करने की नजर से कंप्लेन कर रहे हैं, तो आई विल ट्रीट ऑल ऑफ देम इन अ वे जिस तरह किसी ऐसे को ट्रीट करना चाहिए जो एक्सप्लॉइट कर रहा है। नॉट एवरीबडी इज देयर टू एक्सप्लॉइट। एक्चुअली एज सर्विस प्रोवाइडर्स हमें तो ये देखने की जरूरत है कि यार कोई भी हमें एक्सप्लॉइट नहीं करता। सो इफ वी हैव मेड अ मिस्टेक इन बिजनेस एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके, हैपेंस विद द बेस्ट ऑफ अस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कारोबार कर रहे हो और उसमें सब कुछ डे वन से स्मूथ चलता रहे। Amazon के भी पैकेजेस होते हैं यार, अलीबाबा के भी पैकेजेस होते हैं, दराज के भी होते हैं। सो जो घर से ऑपरेट कर रहा है छोटा सा कारोबार, उसके लिए तो आसान है डिलीवरी लेट हो जाना, पैकेज का खो जाना, ऑर्डर का गलत हो जाना, लेकिन कस्टमर को विन करे रखना बहुत जरूरी है। वो कैसे होता है? जब आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। रिलेशनशिप कैसे बनता है? जब आप कस्टमर को वैल्यू ऐड करते हैं। वैल्यू ऐड किसी भी फॉर्म में करना आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है। इन अ नटशेल ये कहना गलत नहीं होगा कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाना इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। मिसाल के तौर पे आप डेल्फ्री हो जाते हैं या आप किसी रेस्टोरेंट के ऊपर जाते हैं और वहां आप किसी मैनेजर को या सर्वर को बुलाते हैं और पूछते हैं कि यार क्या ऑर्डर करूं, ये मेन्यू मेरे सामने है, मेरा कुछ इस तरह का खाने का दिल चाह रहा है, यू नो। अब व्हाट वुड यू लाइक, परहैप्स जो वेटर या जो सर्वर या ये मैनेजर है ये आपको सजेशन दें कि सर दिस इज द काइंड ऑफ फूड दैट यू लाइक टू हैव, तो फिर आपको ये ऑर्डर करना चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि इसके साथ साथ ये भी ऑर्डर करें और ये भी ऑर्डर करें। हाई चांसेस है कि जो कस्टमर बैठा हुआ है वो तमाम चीजें ऑर्डर करेगा जो उसको रेकमेंड की जाए, वर्सेस एक और मैनेजर या सर्वर है जो जाता है, मेन्यू रखता है और चला जाता है, और थोड़ी देर बाद जाके पूछता है बताएं सर क्या ऑर्डर करना है। और जब उससे आगे से पूछा जाता है यार कुछ बता क्या ऑर्डर करें, तो बोलता है सर मुझे क्या पता सर, सभी कुछ अच्छा है, जैसा आपका दिल चाहे, जो आपका दिल चाहे वो ऑर्डर कर। चांसेस पहले वाले सिनेरियो में ज्यादा है कि ज्यादा आइटम बिक सकते हैं, क्रॉस सेलिंग हो सकती है, अप सेलिंग हो सकती है, रिलेशनशिप ज्यादा बेहतर हो सकता है वर्सेस सेकंड सिनेरियो। मैं अभी 2 दिन पहले की बात है, आई वेंट टू डेल्फ्रियो टू टेक अवे फूड, और वहां जो मैनेजर था, तो आई वॉक्ड इन एंड आई आस्क्ड हिम अ फ्यू क्वेश्चंस एंड ही सेड आप ये ऑर्डर करें, ये ऑर्डर करें, ये ऑर्डर करें, इसके साथ आई वुड सजेस्ट, आई वाज थिंकिंग ऑफ अ सूप, तो उसने बोला सर ये वाला सूप इसके साथ ज्यादा अच्छा लगेगा, आई थिंक यू शुड ऑर्डर दिस सूप, तो मैंने वो ऑर्डर कर दिया जो उसने कहा था। बोलेगा सर नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू हैव टू ऑर्डर आई एम गोना मेक श्योर कि आपके खाना जो है वो रेडी हो बिफोर यू कम इन। हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो वो आपको एंटरटेन इस तरह से करेंगे नहीं, प्लीज टेक माय मोबाइल नंबर, हियर इज माय कार्ड, गिव मी अ कॉल, आई विल मेक श्योर कि आपके आने से पहले खाना रेडी हुआ हो व्हेनेवर यू आर कमिंग।
मुझे बस 15 मिनट पहले फोन कर दें एंड आई विल गेट योर ऑर्डर। नाउ दिस वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद दिस गाय। सो 100% मेरा उसने जो किया है उससे उसने मेरा ट्रस्ट भी विन किया है और मेरा रिलेशनशिप भी परहैप्स उसके साथ बनने की तरफ है कि अब जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं उसे कॉल करूंगा। और अगर उसने मुझे एक दफा एंटरटेन कर दिया और फोन के ऊपर कि मैंने फूड का ऑर्डर प्लेस किया और वो रेडी हुआ बाय द टाइम आई एम रीचिंग देयर, देन आई एम नेवर गोइंग अवे फ्रॉम दैट ब्रांच ऑफ डेल्फी। आई विल बी गोइंग टू द सेम ब्रांच अगेन एंड अगेन एंड आई एम श्योर आप भी एग्जैक्टली यही कर रहे हो। You know, that is the power of engaging your customer, that is the power of adding value to your customer. So demands होती हैं हर बिजनेस से होती है। फिर आता है C which is the constraints. Now चक्कर ये है कि उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ constraints जरूर होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ hurdles जरूर होंगे। It is never going to be smooth and easy and free flow कि यार कस्टमर ने आपसे डिमांड की, आपने चाहा कि आप उसको पूरा कर दें और वो ठक करके पूरी हो। So there always will be certain constraints that you'll be facing. Now question is कि उन constraints का क्या किया जाए, because you know can you really overcome this scenario कि constraints ना हो? जवाब है नहीं, because constraints ना हो ऐसा possible नहीं है। Also ये भी समझने की जरूरत है यार कि अगर constraints नहीं होंगे ना तो हमारा बिजनेस ग्रो भी नहीं करेगा। बिजनेस की ग्रोथ के लिए constraints जरूरी है। I'll tell you how. मिसाल के तौर पे let's say आप ये एग्जाम्पल उठा लेते हैं जो आई थिंक निगारिश ने बात की थी थोड़ी देर पहले। ये एग्जाम्पल उठा लेते हैं कि यार मिसाल के तौर पे निगारिश एक ऑनलाइन स्टोर चलाती है जिसके ऊपर जो है वो अडल्ट डायपर्स, सैनिटरी नैपकिन्स, टिश्यू पेपर्स, डायपर्स, वाइप्स, ये तमाम चीजें जो है वो अवेलेबल। ओके, नाउ पॉसिबल कॉन्स्टेंट क्या क्या आ सकते हैं कि चाइना से जो है वो इंपोर्ट बंद हुई है, टर्की से इंपोर्ट बंद हुई है। जब ज्यादातर ब्रांड जो है वो टर्की और चाइना से आ रहे हैं जो इस वक्त मार्केट के अंदर मशहूर हुए हैं। हमारे लोकल ब्रांड ऐसा कुछ खास मशहूर है नहीं। सो एक ये कांस्टेंट आ सकता है। एक ये कांस्टेंट आ सकता है कि हमने ये प्लान किया था कि हम ओवरनाइट डिलीवरी करेंगे, लेकिन हमें कोई डिलीवरी पार्टनर नहीं मिल रहा है ऐसा जो ओवरनाइट डिलीवरी कमिट कर सके। और क्या कांस्टेंट आ सकता है कि यार अगर कराची के अलावा दूसरे शहरों के अंदर भी ओवरनाइट डिलीवरी करनी है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें उन शहरों के अंदर भी वेयर हाउसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अलग किसी और शहर से दूसरे शहर तो ओवरनाइट डिलीवरी होना बड़ी मुश्किल बात है, या सेम डे डिलीवरी होना हो नहीं सकती। नॉट नेसेसरी कि आपको फ्लाइट्स मिले और उसके बाद आपका कार्गो जाए वगैरह वगैरह, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट टू इट। आखिर में जो तीसरा सी है दैट इज चॉइसेस। और चॉइसेस और कॉन्स्टेंट्स में साथ साथ इसलिए कर रहा हूं कि जब भी आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपके पास कॉन्स्टेंट्स होते हैं, आपके पास डेडलॉक्स आते हैं, आपके पास रोड ब्लॉक्स आते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर होता है कि आप क्या चॉइस ले रहे हैं, किस तरह से उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। आर यू बिकमिंग वन ऑफ दोज पीपल हु वुड से कि यार सही है ये तो मुसीबत पै गई है, ये तो हो नहीं सकता, और आर यू बिकमिंग दैट वन पर्सन जो किसी भी तरह मसले को रिजॉल्व करने में लगा हो। सो एज अ बिजनेस, एज एन एंटरप्रेन्योर, कामयाबी के लिए जरूरी है कि जितने ज्यादा कॉन्स्टेंट्स आए उतनी ज्यादा आप बेहतर ऑप्शंस निकाल सकें। जितने ज्यादा कॉन्स्टेंट्स आएंगे उतना ही आप बिजनेस की डेप्थ में, हर सेंस में, हर डायरेक्शन में सोच पाएंगे। इज दैट मेकिंग सेंस टू यू? यस और नो चैट में क्विकली बता दें। ओके यासीन, कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है रोड ब्लॉक्स, परेशानियां, या आपने जैसा प्लान किया था वैसा हो नहीं रहा। मिसाल के तौर पे अभी मैंने जो भी एग्जांपल दी
कि हमने ये प्लान किया था यार कि हम सेम डे डिलीवरी करेंगे, लेकिन आपको कोई ऐसा डिलीवरी पार्टनर नहीं मिल रहा। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ये ऑप्शन है कि यार आप अपना राइडर रख लें, एक चॉइस ये है। आपके पास एक ये चॉइस है कि आप हर डिलीवरी बाइकिया या करीम के थ्रू कराएं, उनके साथ पार्टनरशिप स्ट्राइक करने की कोशिश करें अगर कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी जो है वो सपोर्ट नहीं दे रही है। आपके पास ये चॉइसेस है कि आप खुद भर भर के जाएं। मैं आपको एक बिजनेस की एग्जांपल देता हूँ। दो लोगों ने अमेरिका में बिजनेस शुरू किया। वो बिजनेस क्या था? वो सेम बिजनेस था, डायपर्स का। बच्चों के डायपर्स जो है वो ऑनलाइन स्टोर खोला उन्होंने, और निगारिश ओवरनाइट डिलीवरी का मतलब होता है नेक्स्ट डे या परहैप्स सेम डे, एक दिन से ज्यादा का टाइम ना हो डिलीवरी। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एनीवे, सो जो मिसाल दे रहा था, अमेरिका में दो लोगों ने कारोबार शुरू किया। कारोबार ये था ऑनलाइन सेल जो होगी डायपर्स की, और हम सेम डे डिलीवरी करेंगे और सस्ते तरीन रेट्स में देंगे। अब इस कारोबार को शुरू करने के लिए जाहिर सी बात है इनको इन्वेंट्री भी प्रोक्योर करनी थी, डायपर्स प्रोक्योर करने थे, चीजें प्रोक्योर करनी थी ताकि वो अपने कस्टमर तक पहुंचा सके। ओके, उसके लिए ये स्टोर्स पे जाते थे, चीजें करते थे, डायपर्स प्रोक्योर करते थे बड़े बड़े स्टोर से, जहां से इनको होलसेल रेट के ऊपर सामान मिल सके। इन्होंने डायरेक्टली कंपनीज को अप्रोच किया और कंपनीज को बोला कि भाई हमें डायपर्स दे दो। कंपनीज ने इनको मना कर दिया देने से कि हम तुम्हें नहीं दे रहे, तुम कोई ट्रस्टवर्दी स्टोर नहीं हो, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, कस्टमर तुम्हें जानता नहीं है, हम तुम्हें क्रेडिट पे कैसे देते हैं सामान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्होंने क्या करना शुरू किया कि ये बड़े बड़े, जिस तरह हमारे यहाँ मेट्रो है, प्याज है, बड़े बड़े स्टोर हैं, उस तरह अमेरिका में बेस्ट बाय है, वॉलमार्ट है, और बड़े स्टोर्स हैं जहाँ पे आप होलसेल के ऊपर क्वांटिटी के अंदर सामान खरीद रहे होते हैं तो मिल जाता है। ये खुद उन स्टोर पे जाते थे, वैन्स में अपनी गाड़ियों में, अपनी ही गाड़ियों की डिग्गी में सामान भर भर के लेकर आते थे अपने घर घर के ऊपर, और वहां से फिर खुद ही डिलीवर करते थे क्योंकि उनको कोई डिलीवरी पार्टनर नहीं मिल रहा था ऐसा जो सेम डे या अगले दिन, मैक्सिमम अगले दिन जो है वो डिलीवरी कर सके। सो कॉन्स्ट्रेंट था, और उन्होंने चॉइस ये ली कि यार हम खुद जाके प्रोक्योर कर लेंगे, खुद जाके डिलीवर कर देंगे इन द बिगिनिंग। इवेंचुअली वो सेल्स इतनी स्काई रॉकेट हुई कि एक टाइम आया कि ये स्टोर पे जाते थे और शेल्फ सारे खाली करके सारा सामान खुद खरीद के ले आते थे। अब कोई भी स्टोर हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर मेट्रो हो या बेस्ट बाय हो या कोई भी स्टोर हो, उसके लिए ये बात सही नहीं है कि कोई एक कस्टमर आए और सारा सामान ले जाए। वो ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसका सामान लेके जाए। तो स्टोर वालों ने इनको तंग करना शुरू कर दिया कि भाई तुम सारा सामान ले जाते हो, हमारे दूसरे कस्टमर्स के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो अब इन्होंने ये किया, क्योंकि कंपनी इनको डायरेक्टली नहीं दे रही थी, इन्होंने ये किया कि तुम उसी कंपनी के कस्टमर हो, तुम उस कंपनी को बोलो कि वो हमें दे ताकि हम बेच सकें, ताकि तुम भी बेच सको। And eventually the company was forced to give them the product on their own, instead के वो अब स्टोर पे जाते थे, कंपनी खुद उनको डिलीवर करवाती थी, and so forth. So idea here is कि आप जब भी बिजनेस में होते हैं, there are constraints, आप क्या choices ले रहे हैं ये डिपेंड करता है, और वो choices ही डिफाइन करती हैं कि फ्यूचर डायरेक्शन क्या होगी। और वो बिजनेस परहैप्स फिर इतना बड़ा बन गया that they were able to sell this business in a good amount of money, in some millions of dollars. वो किसी दूसरी कंपनी ने उनको एक्वायर कर लिया, और दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो डीसीसी, जब भी बिजनेस करेंगे कुछ ना कुछ डिमांड जरूर होंगी, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट जरूर होंगे, कुछ ना कुछ चॉइसेस आपको लेनी पड़ेंगी। आप क्या चॉइसेस ले रहे हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, और वही चॉइसेस डिफाइन करेंगी कि आपकी बिजनेस आगे जाके अच्छा काम कर रही है या तबाह हो रही है। ओके, नाउ moving into the next part कि यार as an entrepreneur, as an individual, as a human being, क्या वो चीजें हैं जो जरूरी हैं एक बिजनेसमैन के अंदर या एक बिजनेस वुमेन के अंदर या एक कारोबारी इंसान के अंदर, जो चाहे किसी भी लेवल का कारोबार करता हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो मकान से हो रहा हो, चाहे वो कहीं से भी हो रहा हो, पाकिस्तान में हो रहा हो, पाकिस्तान से बाहर हो रहा हो, क्या वो चीजें हैं जो एक इंसान की शख्सियत के अंदर जरूरी है उसे बिल्ड करना अगर मौजूद नहीं है टू बी एबल टू सक्सेसफुल in business. So 7 things, 7 characteristics which are important for any business person to have. Number 1, self motivation. बड़ी कॉमन सी बात है कि यार मोटिवेशन जरूरी है, मोटिवेशन के बगैर आप काम नहीं कर सकते।
you know, etc etc. However, let me define कि motivation होती क्या है. And perhaps शायद ये definition पहले ना सुनी हो आपने, थोड़ी सी वक्री definition है, अजीब सी definition है. Motivation actually अपनी करंट हालत से डीमोटिवेट होने का नाम मोटिवेशन. करंट स्टेट से डीमोटिवेट होने का नाम मोटिवेशन. जब आप अपने करंट हालात से डीमोटिवेट होंगे तो ही आपको वो फायर, वो ट्रिगर, वो पुश मिलेगा कि यार नाउ देयर नीड्स टू बी समथिंग दैट नीड्स टू हैपन एंड आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन दैट यू कैन हैव. अब जब आप कारोबार शुरू करते हैं तो नॉट एवरीथिंग गोज नॉर्थ, नॉट एवरीथिंग गोज स्मूथ. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट डजंट गो एज पर द प्लान. देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब सेल्स नहीं हो रही होंगी. देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जब वो रेवेन्यू में कन्वर्जन नहीं आ रहा होगा. आप मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे होंगे लेकिन कस्टमर आ भी रहा होगा आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन सेल नहीं हो रही होगी. दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड सेल्फ मोटिवेशन द मोस्ट. That is the time when you need to believe in your reason of starting the business, because that is the force that keeps you going. और ये समझने की जरूरत है कि yes, there would be a business जो शायद 1 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर रिस्पॉन्ड करना अच्छा शुरू कर दे, and then there would be businesses जो शायद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का टाइम मांगेंगे. So please understand this, self motivation एक बड़ा important कैरेक्टरिस्टिक है जो आपके अंदर, मेरे अंदर बड़ा जरूरी है अपना कारोबार शुरू करने के लिए भी और उसको सस्टेन करने के लिए. नंबर 2 इज अंडरस्टैंड व्हाट यू ऑफर एंड हाउ इट फिट्स द मार्केट. थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फर्क होता है. तो ये समझना जरूरी है कि यार मैं क्या बेच रहा हूँ, मैं किसके लिए बेच रहा हूँ, इसकी मार्केट कौन है, क्या करते हैं वो लोग, क्या उनका एज ग्रुप है, उनके बाइंग प्रेफरेंसेस क्या हैं, किस तरह की चीजें खरीदते हैं वो लोग. सो ये तमाम डेटा, इस तमाम चीजों के ऊपर रिसर्च करना और इसको समझना इंतहाई जरूरी है ताकि आप इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकें, ताकि आप वो काम कर सकें कि यार मेरा प्रोडक्ट होगा क्या, उसके फीचर्स क्या होंगे, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, वो डिलीवर कैसे होगा, उसकी मार्केटिंग के ऊपर क्या करना है, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेंड करना है, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेंड नहीं करना, सो एंड सो फोर्थ. ओके, नेक्स्ट इज टेक रिस्क्स. तो इसके ऊपर हम ऑलरेडी आई थिंक काफी बात कर चुके हैं. उर्दू में कहते हैं, कहावत है, और मैं यहाँ टाइप भी कर देता हूँ कि अगर सुनने में परेशानी हो, कि रिस्क में रिस्क है. रिस्क में रिस्क है. जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा रिस्क में इजाफा होने का चांस है. कहते हैं दैट the creator has kept 90% of the wealth, 90% of the wealth of this world in tijarat, in karobar. Rest of the 10% is divided in all the jobs of the world. So bigger pool के अंदर से, बड़े समंदर के अंदर से, बड़े दरिया के अंदर से मछली पकड़ना ज्यादा आसान है वर्सेस जहां टोटल मछलियां ही 10 हैं और उन 10 के पीछे सबके सब पड़े. That's how I look at it. Okay. Next is know how to network. तो अपने नेटवर्क के ऊपर काम करना जरूरी है. आपका नेटवर्क जो है, again there's another saying that your network, I'm just typing it for you, your network is your net worth. जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी नेट वर्थ होगी. आपका नेटवर्क ये नहीं है कि आप कितने लोगों को जानते हैं, आपका नेटवर्क ये है कि कितने लोग आपको जानते हैं. There's a difference there. So please understand this, कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग आपका नाम सुने, ज्यादा से ज्यादा लोग ये पहचानते हो कि आप ये काम करते हैं, ताकि जैसे ही उनको या उनके किसी जानने वाले को उस सर्विस की या उस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है जो आप बेचते हैं, तो वो रेकमेंड कर सकें, रेफरल दे सकें. Because that is the most powerful tool of PR or marketing that a business can achieve.
नंबर 5 इज मनी मैनेजमेंट। जब भी कारोबार शुरू कर रहे होते हैं उसमें मनी मैनेजमेंट बड़ी जरूरी है। मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स को जानता हूँ जो शुरू हुए, जिनको इन्वेस्टमेंट मिली, सीड इन्वेस्टमेंट मिली, बड़े पैसे मिले, बट देन दे लॉस्ट द ट्रैक। हाउ डिड दे लूज द ट्रैक? पैसा मिला तो बड़ा ऑफिस बना लिया, शशके वाला ऑफिस बना लिया, टीम बढ़ा ली, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर दिया, एंड यू नो सो एंड सो फोर्थ। लेकिन इन्वेस्ट अगर नहीं किया तो किस चीज में नहीं किया, क्या प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली कैसे बेहतर बनाना है, पैकेजिंग को कंटिन्यूसली कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना है, रीच कैसे बेहतर बनानी है, डिलीवरी चैनल्स या डिलीवरी पार्टनर्स जो है उनको किस तरह से ऑप्टिमाइज करना है, किस तरह से बेहतर करना है, अपनी मार्केटिंग के ऊपर कैसे ज्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट करनी है। इंस्टेड ऑफ दैट दे वेंट द अदर वे इनटू द शशकास ऑफ द बिजनेस कि अब तो पैसा आ गया है, अब तो कारोबार चल रहा है, और मनी मैनेजमेंट जो है वो उनकी पीछे रह गई, जिसकी वजह से आज वो बिजनेसेस एक्सिस्ट नहीं करते। सो आई नो अ लॉट ऑफ सच प्लेसेस जो बड़ी बड़ी जगहें खुली, बड़े ख्वाब लेके खुली, बड़े पर्पसेस के साथ खुली, बड़ा विजन था उनका, लेकिन नहीं सस्टेन कर सके क्योंकि मनी मैनेजमेंट जीरो थी। रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या होंगी, कैसे होंगी, वो जीरो था। पैसा आ जाना या पैसा होना शर्त नहीं है बिजनेस चलाने की। बिजनेस खोलने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसे हो। आप कारोबार 10, 15, 20, 25 हजार रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। इट रियली डजंट मैटर। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से काम शुरू कर सकते हैं। सो ये एक्सक्यूज देना अपने आप को कि यार पैसे नहीं है, अभी कारोबार नहीं हो सकता, ये आई थिंक अपने साथ ना इंसाफी। अनलेस कि आप कोई ऐसा कारोबार सोच रहे हैं जिसमें दुकान या कोई फिजिकल जगह या रेस्टोरेंट जो है वो होगा, तो ही आप काम करेंगे। एक और आदमी आजकल एक चल रहा है, बड़ा मशहूर हुआ है कराची फूड डायरी के ऊपर और सोवट के ऊपर भी, खाने से रिलेटेड फूड इंडस्ट्री। उसका कोई रेस्टोरेंट नहीं है, उसका कोई फूड कार्ट भी नहीं है। उस बंदे का नाम है, उस बिजनेस का नाम है, बिजनेस का नाम है दैट गाय आरिफ। ओके, मैं यहाँ टाइप भी कर देता हूँ। उस बिजनेस का नाम है दैट गाय आरिफ। ये आदमी क्या करता है? ये आदमी फ्रोजन पैटीज बेचता है, बर्गर्स की, होममेड हैलपिनो पिकल बेचता है, होममेड मस्टर्ड सॉस बेचता है, और इस तरह की चीजें बेचता है जिससे लोग घर में बर्गर्स बना सके। दबा के चल रहा, क्रेजी ऑर्डर्स, पीपल आर गोइंग बॉन्कर्स, उसको ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं, इकोनॉमिकल प्राइस पॉइंट है, लोगों को भी मजा आता है, होममेड चीज है यार, घर की बनी हुई चीज है, घर में बनी हुई चीज खाते हैं तो बच्चों को खिलाने में भी सेफ महसूस करते हैं। बाहर के बर्गर्स बहुत मंगा लिए, बहुत खा लिए, वो भी ठीक है, कभी कभी चलता है, लेकिन घर में भी घर बनाना है तो घर में सामान मंगा के फ्रीज कर दें, जब भी बनाना है निकाले बना लें। है फूड इंडस्ट्री ही, लेकिन एक बड़ी नीश मार्केट को इसने टैप किया है। उसने देखा यार बर्गर्स बड़े सारे लोग बेच रहे हैं, पास्ताज बड़े सारे लोग बेच रहे हैं, व्हाई नॉट डू समथिंग ऑफ द सॉर्ट जो कोई नहीं कर रहा। So he came up with this beautiful business model, beautiful plan. Next is flexibility. इंतहाई जरूरी है इंसान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना। क्यों? क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ यार डायनामिक्स चेंज होते हैं। 22 मार्च 2020 तक दुनिया कुछ और थी, 23 मार्च को छुट्टी थी, और 24 मार्च 2020 को जब दुनिया सो के उठी है, पाकिस्तान सो के उठा है, तो दुनिया बदली हुई थी। क्या हुआ था? लॉकडाउन था। क्या बिजनेसेस बंद हुए इस टाइम में? यस हुए। क्या बिजनेसेस ग्रो हुए इस टाइम में? बिल्कुल हुए। क्या बिजनेस ने इम्प्रोवाइज किया? बिल्कुल किया। क्या ऐसे बिजनेसेस भी बस बैठे रहे कि यार शायद बेहतरी आ जाएगी, दुकान वापस खुल जाएगी? बिल्कुल बैठे रहे, और उनका नतीजा ये था कि लॉसेस उठाते रहे और इवेंचुअली कारोबार बंद करना पड़ा। सो फ्लेक्सिबिलिटी इंतहाई जरूरी है आपके अंदर एज अ बिजनेस पर्सन। क्यों? क्योंकि हर आने वाले दिन की डायनामिक चेंज होंगी, हर आने वाले टाइम पर कस्टमर की डिमांड मुख्तलिफ होगी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो नहीं सस्टेन कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी क्रूशल। एंड लास्टली पैशन। पैशन मतलब आप अपने वाई पे क्लियर हो कि ये कारोबार में कर क्यों रहा हूँ या कर क्यों रही हूँ। व्हाट इज माई वाई, वाई एम आई डूइंग दिस, और उस वाई को लेके पैशनेट होना जरूरी है।
इंस्टेड ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस उसके बारे में पैशनेट होना। वाई के ऊपर पैशनेट होंगे तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा चांसेस हैं आपके सर्वाइव करने के, ज्यादा चांसेस है कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा कोई बात नहीं, मैं इसी वाई को कैसे और फुलफिल कर सकता हूँ, कैसे और पूरा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, कोई और प्रोडक्ट या कोई और सर्विस बेच। These are the 7 characteristics that are essential for you to have to be able to run a successful business. Okay? यहां तक बात समझ में आ रही है? Yes or no? Chat के अंदर quickly. Okay, Rida, thank you. Yasin, thank you. Okay, Yunus, thank you. Right, Mariam, thank you very much. यासीन तुमने कमेंट किया था या चैट में लिखा था, हाउ कैन आई एनहांस माय ऑनलाइन एजुकेशन एकेडमी, स्ट्रगलिंग टू गेट द स्टूडेंट्स एंड द एनरोलमेंट्स। सो यासीन, हम बिल्कुल बात कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ इट आई एम गोना टेल यू कि तुम किस तरह से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और परहैप्स आई एम गोना अनाउंस इट फॉर एवरीवन सो दैट अगर किसी को भी कोई सपोर्ट चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कहीं पे कोई मेंटरिंग चाहिए, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। आई एम हियर टू सपोर्ट, और हम बातचीत बिल्कुल कर सकते हैं आपके चैलेंजेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं यार। किसी भी कारोबार की 3 स्टेजेस होती हैं। सो बॉटम के ऊपर आपको नजर आ रहा है इनफेंसी स्टेज। इनफेंसी स्टेज वो स्टेज होती है जहां कारोबार शुरू किया जा रहा होता है, सोचा जा रहा होता है कि क्या चीज कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। ये वो स्टेज है जहां बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी कंफ्यूजन और इवेंचुअली उसकी एग्जीक्यूशन होती है। सो इनफेंसी स्टेज इज दैट स्टेज जहां पे आप प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन वाला तमाम एलिमेंट कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को क्रॉस चेक कर रहे होते हैं, लोगों के साथ रिसर्च कर रहे होते हैं, लोगों का इनपुट ले रहे होते हैं, फीडबैक ले रहे होते हैं, हाउ डू यू गेट बेटर, हाउ डू यू बिकम बेटर, हाउ डू यू बिकम बेटर, एंड इवेंचुअली इनफेंसी स्टेज से आगे बढ़ के आप एडोलेसेंट स्टेज के ऊपर जाते हैं। इनफेंसी स्टेज अगर मैं सालों में डालूं या टाइमलाइन के ऊपर डालूं तो इनफेंसी स्टेज जो है वो यार शुरू के 2-3 साल है। दैट्स द टाइम जहां पे आप बिजनेस शुरू करते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बिजनेस। सो दैट्स द स्टार्टिंग स्टेज। नंबर 2 स्टेज है एडोलेसेंट स्टेज। एडोलेसेंट स्टेज क्या होती है? जहां आप बिजनेस को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार ठीक है, बिजनेस आना शुरू हो गया है, रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया है, नाउ आई नीड टू बी इन अ पोजिशन कि मिसाल के तौर पे अगर एक दिन कोई सेल ना हो, एक हफ्ते कोई सेल ना हो, एक महीने कोई सेल ना हो, तो मैं सस्टेन कैसे करूंगा अपने बिजनेस को, अपने लोगों को, अपनी टीम को, अपनी एफर्ट्स को कैसे सस्टेन करके रखूंगा। लेट्स से अगर सेल्स में डिप आता है, मिसाल के तौर पे आप लेट्स से कोई ऐसी चीज बेचते हैं जो बड़ी सीजनल है, ओके, लेट्स से आप सॉक्स बेचते हैं, कस्टमाइज सॉक्स बेचते हैं, ठीक है, उसकी सेल बड़ी हाई हो जाती है विंटर्स के अंदर, लेकिन रिलेटिवली लो होती है समर्स के अंदर। और ये कस्टमाइज सॉक्स क्या है कि यार लोग जो है वो आपको कोई भी विजुअल भेज दें, कोई भी कार्टून भेज दें, कोई भी तस्वीर भेज दें, आप वो तस्वीर, वो कार्टून, वो विजुअल, वो शक्ल सॉक्स पे प्रिंट करके सॉक्स उनको शिप कर देंगे। ये आपका बिजनेस है मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब विंटर्स में उसकी डिमांड बढ़ जाती है, समर्स में उसकी डिमांड कम हो जाती है, सो एंड सो फोर्थ। सो एडोलेसेंट स्टेज के ऊपर आप ये डिसाइड करते हैं कि यार जब मेरी डिमांड कम हुई होगी लेकिन एक्सपेंसेस उतने ही होंगे जितने होते हैं, तब बिजनेस कैसे सस्टेन करेगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा अपनी सेल्स को, मैं कैसे मैनेज करूंगा अपने एक्सपेंसेस को अपने बिजनेस के, मैं अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स के ऊपर क्या करूंगा, मैं प्रोडक्ट में कैसे क्या इम्प्रोवाइजेशन ला सकता हूं टू मीट दिस डिप इन द बिजनेस, टू मेक श्योर कि ये डिप जो आ रहा है ये वापस से राइज कर जाए, ओके। एंड देन कम्स द मैच्योरिटी स्टेज, जहां पे आपको सिस्टम्स, ऑपरेशंस, चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है, शदीद तौर पे काम करना पड़ता है। इनफेंसी मिसाल के तौर पे एक ऑनलाइन स्टोर अगर आप शुरू करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का हो,
इन्फेंसी स्टेज के ऊपर डिलीवरीज और ऑपरेशंस मैनेज करना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते हैं, लेकिन मेच्योरिटी स्टेज के ऊपर आपको हेवीली इन्वेस्ट करना पड़ता है डिलीवरी ऑप्शंस के ऊपर, ऑपरेशंस के ऊपर और डिलीवरी चैनल्स को बेहतर करने के लिए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ चुके होते हैं। मिसाल के तौर पे एक दिन में अगर 5 ऑर्डर आ रहे हैं तो आप वो खुद भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक दिन में 500, 1000, 2000 ऑर्डर्स आ रहे हैं, चाहे वो कितने ही छोटे कितने ही बड़े क्यों ना हो, उसको मैनेज करना आपके अकेले के बस की बात नहीं है। आपको एक बाकायदा टीम बनानी पड़ेगी जो ऑपरेशन हैंडल कर रही होगी इफेक्टिवली। आपको टीम बनानी पड़ेगी जो डिलीवरी पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रही होगी। आपको टीम बनानी पड़ेगी जो पैकेजिंग के ऊपर काम करनी पड़ेगी। सिस्टम पूरा चल रहा होगा जहाँ पे कांस्टेंट अपडेट्स हो रही होंगी कि अब प्रोडक्ट यहाँ है, अब प्रोडक्ट यहाँ है, अब प्रोडक्ट यहाँ है। सो हर स्टेज की डिमांड्स अलग है, कॉन्स्टेंट्स अलग है, चॉइसेस अलग है। एवरी स्टेज हैज सर्टेन डिमांड्स, सर्टेन कॉन्स्टेंट्स, सर्टेन चॉइसेस। एंड हियर्स अ गोल्डन टिप, आप जिस वक्त जिस स्टेज पे हो उस वक्त सिर्फ उसी स्टेज का सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, हम में से बहुत सारे लोग कारोबार शुरू इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं यार जब कारोबार बढ़ जाएगा तो मैं डिलीवरीज कैसे मैनेज करूंगा, मैं मार्केटिंग कैसे मैनेज करूंगा, इतने पैसे कहां से आएंगे। हालांकि आप होते इन्फेंसी स्टेज के ऊपर हैं, आप होते शुरुआत करने वाली स्टेज के ऊपर हैं। तो समझने वाली बात यह है कि इन्फेंसी स्टेज पे जब हो तो सिर्फ वो देखने की जरूरत है और उन चीजों को प्लान करने की जरूरत है जिसकी डिमांड इन्फेंसी स्टेज में होती है। इन्फेंसी स्टेज में क्या डिमांड्स होती हैं कि यार मैं कस्टमर को एजुकेट कैसे करूंगा। दूसरी डिमांड क्या होती है कि मैं कस्टमर के आई बॉल्स के सामने कैसे पहुंचूंगा, मेरा नाम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के सामने। तीसरी डिमांड होती है कि मैं कस्टमर के जहन में अपना नाम रजिस्टर कैसे कराऊं। चौथी डिमांड होती है कि प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी जो मैं बेच रहा हूँ उसको कैसे बेहतर बनाऊं। पैकेजिंग का क्या करूं, डिलीवरी शुरू के 10 ऑर्डर होंगे, अपना राइडर रखूं, बाइकिया करूं, करीम करूं, लेपर्ड करूं, कोई और सर्विस को एक्वायर करूं, उसको सस्ता कैसे करूं अपने लिए। सो इन्फेंसी स्टेज की मेजर डिमांड होती है कि कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे हासिल करना है, कम खर्च बाला नशी। एडोलेसेंट स्टेज की डिमांड होती है कि यार अब टीम बनाने की जरूरत है, लोग हायर करने की जरूरत है, लेकिन क्रेजी नहीं होना हायर करने में या सिस्टम्स बनाने में या लोगों को हायर करने में। तो मुझे बेयर मिनिमम किन लोगों की, किन सिस्टम्स की, किन चीजों की जरूरत है ताकि मैं अपने ऑपरेशंस को बेहतर बना सकूं, अपनी चीजों को बेहतर बना सकूं। और मेच्योरिटी स्टेज में आप हेवीली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने सिस्टम्स पे, अपने स्ट्रक्चर्स पे, लोगों पे, प्रोसेसेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्ट डेवलप हो चुका होता है, मार्केट डेवलप हो चुकी होती है, कस्टमर अवेयर होता है, ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, आपने उनकी डिलीवरी मैनेज करनी है, आपने वैल्यू एडिशन कॉन्स्टेंटली करते रहनी है, उसमें क्रिएटिव होना है, क्रिएटिव कैंपेन्स के साथ आना है, सो एंड सो फोर्थ। ओके, समझ में आ रही है बात? यस, नो? चैट में क्विकली बता दो। फैंटास्टिक। ठीक है, आखिरी चीज पे जा रहे हैं यार आज के दिन की, वो है बिजनेस मॉडल कैनवस। अब ये उन तमाम लोगों के लिए है, और मैं आई वॉन्ट यू टू पिक अप अ पेन और अ पेपर और समथिंग टू क्विकली डू दिस एक्सरसाइज विद मी। और हम 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि ये आपका लॉन्चिंग पैड बन सकता है दिस सेशन, बिकॉज हम आखिरी 20 मिनट के अंदर हैं, can become your starting point for your business. And how is that going to happen? जो मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूं ये बिजनेस मॉडल कैनवस कहलाता है। ये वो एक टूल है या एक पेज है जिसपे अगर आप ऑथेंटिसिटी के साथ, ईमानदारी के साथ और जितनी डिटेल में पॉसिबल हो सकता है उतनी डिटेल में सोच सकते हैं। once this paper, once this पर्चा is तैयार, you are set to launch your business the next moment. You are set to start working the next moment. So please be very attentive to this.
एंड मेक श्योर कि हम जो एक्सरसाइज अब करने जा रहे हैं उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा लोग जो मौजूद हैं वो तैयार हों। मेक श्योर आपके पास पेन पेपर लिखने के लिए कुछ ना कुछ हो, बिकॉज यू विल बी डूइंग इट ऑन योर ओन। आई एम जस्ट गोना डिस्प्ले इट एंड एक्सप्लेन इट टू यू कि क्या करना है, और अगले 10 मिनट फिर आप होंगे और आपके सामने ये तस्वीर होगी जो आपकी रहनुमाई कर रही होगी। Here we go. एक सेकेंड, there's something wrong with my PowerPoint, so let me quickly fix this और मैं आपको फिर वो मॉडल दिखा दूं। Okay. Okay. I hope you all can see this. ये जो टेबल नजर आ रही है बनी हुई है स्क्रीन के ऊपर, ये सबको नजर आ रही होगी। अब देखो एक एक करके चलते हैं, ठीक है। ये बिजनेस मॉडल कैनवस है। ग्लोबली बड़े बड़े बिजनेसेस जो है वो सिर्फ इसी के ऊपर प्लान हुए, एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट ऑनवर्ड्स दे वर इन मार्केट, राइट। सो दिस is tried and tested. This works out in all of the situations. चाहे आप किसी भी चीज का बिजनेस प्लान कर रहे हो, this is something, this is like a blueprint, or perhaps this can create your blueprint for your business. Number 1, टॉप पे लिखा हुआ है डिजाइन्ड फॉर, और से देखना, मेरे साथ चलना। टॉप पे लिखा हुआ है डिजाइन्ड फॉर, ओके। तो मतलब यहाँ आपका वो बिजनेस आएगा, वो नाम आएगा जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा लिखा हुआ है डिजाइन्ड बाय, तो मतलब ये आप डिजाइन कर रहे हैं तो आपका नाम आएगा। डेट आएगी और नीचे सामने वर्जन आएगा। वर्जन मतलब दिस इज द फर्स्ट वर्जन। शायद आप इसको फाइन ट्यून करने के लिए इसका सेकंड वर्जन बनाए, शायद थर्ड वर्जन बनाए, चाहे फोर्थ वर्जन बनाए, हो सकता है ना बनाए, फर्स्ट वर्जन ही इतना अच्छा हो कि आप फर्स्ट वर्जन को आगे लेके चले जाएं। एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। फिर आते हैं इसके कोर कंपोनेंट्स, ओके। कोर कंपोनेंट्स में सबसे पहली चीज है की पार्टनर्स। कोई बता सकता है की पार्टनर्स का मतलब क्या होगा? चैट में अपना माइक खोल के जल्दी से कुछ समझ में आता है कि की पार्टनर्स का क्या मतलब हो सकता है जब बिजनेस की बात करें? ओके, इन्वेस्टर्स कैन बी वन की पार्टनर, और सप्लायर्स, यस ऑफ कोर्स, सप्लायर्स एक बहुत बड़े पार्टनर्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पार्टनर्स होते हैं इन द बिजनेस। सो इन्वेस्टर्स कैन बी वन ह्यूज पार्टनर। अगर आपका कोई को फाउंडर है जो आपके साथ मिलकर काम शुरू कर रहा है, वो आपके की पार्टनर्स में से एक बंदा है, एक इंडिविजुअल है, या 2 है, या 3 है, या 5 है, या 10 है। देन सप्लायर्स, तो जो भी आप यू नो प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं, वो आप प्रोक्योर कहाँ से करेंगे यार? यू नो, वेयर आर यू गोना गेट इट फ्रॉम? हु आर यू गोना गेट इट फ्रॉम? प्रोड्यूसर्स कौन है उसके? राइटली सेड एहसन, कौन बना रहा है? कौन सी वो फैक्ट्रियां हैं जहां वो बन रहा है? लोकली बन रहा है या इंपोर्ट होता है? चाइना से आता है या किसी और मुल्क से आता है? हाउ आर यू गोइंग टू मेक श्योर द कांस्टेंट सप्लाई फ्रॉम दोस पार्टनर्स ताकि आपका बिजनेस हिट ना हो? सो ये आइडेंटिफाई करना और ये वहां पे क्विकली लिखना कि मेरे की पार्टनर्स कौन है। फिर आता है की रिसोर्सेज क्या अवेलेबल है मेरे पास। मेरे पास अभी क्या अवेलेबल है, कितने पैसे अवेलेबल है, कौन कौन से दोस्त, कौन कौन से लोग अवेलेबल हैं जिनसे मैं डिजाइन करवा सकता हूँ, क्या कोई है जिससे मैं वेबसाइट बनवा सकता हूँ या बनवा सकती हूँ और पैसे अभी ना दूं या मिनिमम पैसों के अंदर काम हो जाए। कौन से वो लोग हैं जिनकी मुझे जरूरत पड़ेगी यू नो डिलीवरी पार्टनर्स की, और वो कौन कौन से पोटेंशियल डिलीवरी पार्टनर्स हैं जिनके साथ मैं पार्टनर कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। सो की रिसोर्सेज मुझे क्या क्या चाहिए बिजनेस चलाने के। की रिसोर्सेज के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है की एक्टिविटीज। तो मैं क्या क्या मेन काम करने हैं मुझे अभी ये बिजनेस को लॉन्च करने के लिए? एक, कहां से प्रोक्योर होगा ये हंट करना है।
दूसरा, प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस क्या होगा, इसको फाइनलाइज करना है। तीसरा, जब प्रोडक्ट आ जाएगा तो उसकी पैकेजिंग करनी होगी। पैकेजिंग कहाँ से आएगी, मुझ तक कैसे पहुंचेगी, पैकेजिंग कौन करेगा, ये फाइनलाइज करना है। जब पैकेज हो जाएगा तो जो डिलीवरी पार्टनर है वो कहाँ से पिकअप करेगा, मेरे पास से पिकअप करेगा या मुझे उसको फिजिकली पहुंचाना होगा, ये फाइनलाइज करना है। फिर मैं कस्टमर, अब ये प्रोडक्ट प्लानिंग और डिलीवरी प्लानिंग हो गई। फिर आ गई कस्टमर तक पहुंचेंगे कैसे, मैं कहाँ बेचूंगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेबसाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं सो ये तमाम की एक्टिविटीज की प्लानिंग के मेजर मुझे क्या क्या काम करना। देन कम्स वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है कि मैं एडिशनल वैल्यू क्या ऐड करूंगा अपने बिजनेस से कस्टमर। एक बिजनेस है द गुड फूड कंपनी या कुछ इस तरह का नाम है। वो लोग शहद बेचते हैं, हनी। अलग अलग साइजेस हैं, अलग अलग एसकेयूज है, अलग अलग साइज की बॉटल है। आप उनसे जब शहद ऑर्डर करते हैं तो वो जिस पैकेजिंग के अंदर आता है, जिस बॉक्स के अंदर आता है, उस बॉक्स में शहद की बोतल रखी हुई होती है और उसी बॉक्स के अंदर एक वुडन हनी स्पैचुला भी होता है। अब हनी स्पैचुला जरा इमेजिन करें, वो विनी द पू को इमेजिन कर ले, या फिर हमने जो देखे ना टीवी के ऊपर, वो लकड़ी का होता है और आगे से गोल होता है और उसमें ऐसे ऐसे सर्कल भी बने हुए होते हैं। So that's the value proposition that they are giving to the customer. What additional stuff are you giving to your client, to your consumer? मिसाल के तौर पे फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर क्या आप अगले ऑर्डर के लिए कोई डिस्काउंटेड वाउचर्स दे रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर क्या आप कोई अगले ऑर्डर के लिए कैशबैक दे रहे हैं? क्या आप ऐसा कोई एसोसिएट बाइंग प्लान लॉन्च कर रहे हैं कि भाई उजैर साहब आप प्रोडक्ट खरीदें, आपका कोई जानने वाला आएगा, वो प्रोडक्ट खरीदेगा, आपको हम ये कोड असाइन कर रहे हैं, अगर वो ये कोड डाल देता है तो हम आपको इतना % कैशबैक देंगे या इतना % डिस्काउंट देंगे आपकी नेक्स्ट परचेज के ऊपर। या परहैप्स इवेंट्स के मौके पर, त्योहार के मौके पर आपके जो रेगुलर कस्टमर्स का डेटाबेस है, आप उसमें से कौन से वो लोग हैं जिनको निकाल के क्या भेज रहे हैं, कोई वैल्यू एडिशन, कोई लो कॉस्ट चीज जिससे आप उनके जहन में बार बार रजिस्टर होते हैं। फिर अगला डब्बा है कि आप कस्टमर रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे। अगर गलती हो जाएगी तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, गलती नहीं भी हो रही तो कस्टमर रिलेशनशिप इंप्रूव कैसे होंगे। उसके नीचे डब्बा नजर आ रहा है चैनल्स। ये हैं डिलीवरी चैनल्स, अवेलेबिलिटी चैनल्स। आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा, डिलीवर कैसे होगा, कौन डिलीवर करेगा, कहाँ से पिकअप होगा, जब डिलीवरी हो जाएगी आपके पास इंटीमेटेशन आएगी नहीं आएगी या कैसे आएगी, आपकी आपके डिलीवरी पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग इस बात पे क्या डेवलप हो रही है कि मिसाल के तौर पे उजैर एक कस्टमर है, उसने ऑर्डर प्लेस किया है, उसका ऑर्डर लेट हो गया या खो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, आप या डिलीवरी पार्टनर। कस्टमर की नजर में आपका नाम खराब हो रहा है, आपकी ब्रांड इक्विटी खराब हो रही है नाउ, बट हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सो ये तमाम चीजें चैनल्स की प्लानिंग के अंदर आती है। फिर आखिर में सबसे बड़ा डब्बा आपको नजर आ रहा है कस्टमर सेगमेंट्स का। ये वो डब्बा है कि मैं किसको बेच रहा हूं प्रोडक्ट, क्या मेरी टारगेट मार्केट का एज ग्रुप है, मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, कौन से शहर में ज्यादा बिकेगा, शहर के किन एरियाज में ज्यादा बिकेगा। सो कस्टमर सेगमेंट्स बड़ा जरूरी है आइडेंटिफाई करना। क्यों? ताकि आप टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन चला सकें, ताकि आप उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट का शशका क्रिएट कर सकें, उसकी पैकेजिंग उसी हिसाब से क्रिएट कर सकें, कलर कॉम्बिनेशन उसी हिसाब के रख सकें, सो एंड सो फोर्थ। नीचे आपको नजर आ रहा है कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। अब ये तमाम चीजें जब प्लान कर ली तो अब आपके सामने आप कॉस्ट आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है यार, डिलीवर करने की भी कोई ना कोई कॉस्ट होगी, मार्केटिंग में भी तो एक्सपेंस लगेगा, कस्टमर रिलेशनशिप बनाने के लिए भी तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, चैनल्स के साथ पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए भी तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये तमाम कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें मेरी फिक्स कॉस्ट है, क्या क्या चीजें मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट क्या है, जो हर हाल में इनकर होनी है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो जब सेल होगी तो इनकर होगी, जब कुछ बिकेगा तो ये वाली कॉस्ट इनकर होगी, वरना इनकर नहीं होगी। मैंने अपनी फिक्स कॉस्ट को किस तरह से मिनिमाइज करना है, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर किस तरह से ज्यादा डिपेंडेंट होना है,
वेरिएबल कॉस्ट यूजुअली ज्यादा होती है इन टर्म्स ऑफ नंबर। मिसाल के तौर पे एक 100 रुपए की कोई चीज है, अगर वही चीज आपने फिक्स कॉस्ट का हिस्सा बनाया हुआ होगा तो हो सकता है वो आपको 80 रुपए की पड़ रही हो, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा बनाया हुआ है इसलिए वो आपको 100 रुपए की पड़ती है। 80 रुपए की क्यों पड़ेगी फिक्स कॉस्ट में? क्योंकि आप बल्क में खरीदेंगे। सो ये डिसीजन स्मार्टली लेना कि क्या चीज मैंने बल्क में लेनी है, क्या चीज मैंने वेरिएबल के ऊपर रखनी है, ये बड़ा अहम है किसी भी बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके पास एक लिमिटेड फंड, एक लिमिटेड कैश फ्लो होता है, और अगर आप ज्यादातर पैसा अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर फिक्स कॉस्ट के ऊपर लगा देंगे तो आप बाउंड हो जाएंगे और एक्टिविटीज और वो प्लानिंग जो की होगी वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी बिजनेस, बिजनेस में कहते हैं कैश फ्लो इज किंग। कैश फ्लो इज द ब्लड और द ऑक्सीजन फॉर योर बिजनेस। वो ना हो, सिर्फ क्रेडिट पे सेल होती रहे तो बिजनेस सस्टेन नहीं कर सकता। सो रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है? क्या मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम सिर्फ यही है कि मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा और उससे पैसे कमाऊंगा? क्या मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम ये भी है कि मैं लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में, मिसाल के तौर पे अगर मैं किताबें बेचता हूं तो क्या ये भी होगा कि मेरी जो वेबसाइट होगी जहां किताबें बिका करेंगी वहां एक ना एक कोई ब्लॉग का कॉर्नर भी होगा, वहां पे किताबों की समरी भी हुआ करेगी, और ब्लॉग पे जब ट्रैफिक आएगा तो मैं उस पर एड भी लगाया करूंगा, तो मेरे रेवेन्यू स्ट्रीम, अब किताबें भी बिकेंगी वो भी मेरा रेवेन्यू स्ट्रीम है, जो लोग एड्स देखेंगे वो भी मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम है, क्योंकि स्पॉन्सर मुझे उसके लिए पैसे देगा। और तीसरी रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होगी कि क्योंकि अब जब मैं ब्लॉग्स लिखा करूंगा और अगर मेरा ब्लॉग फेम पकड़ता है, रीच पकड़ता है, तो मैं ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी ले सकता हूं, मैं ब्रांडेड ब्लॉग्स भी चला सकता हूं, चला सकती हूँ अपने ब्लॉग सेगमेंट के ऊपर। तो ये मेरी तीसरी रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाएगी। किसी भी बिजनेस की जीत ये है कि वो एक से ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम चलाए। अगर कोई एक स्टोर, ऑनलाइन स्टोर सिर्फ मोबाइल बेचता है तो वो उसके लिए नाकाम स्टोर है, बल्कि एक ऑनलाइन स्टोर जो मोबाइल बेचता है वो हैंड्स फ्री भी बेचता है, वो चार्जिंग केबल भी बेचता है, वो एयरपॉड भी बेचता है, वो दूसरे एयरबड भी बेचता है, वो इंडिविजुअल या वो स्टोर मल्टीपल चीजें बेचता है, बजाय इसके कि सिर्फ मोबाइल बेच रहा हो, ताकि मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो, ताकि उसके पास रेवेन्यू साइकिल चलता रहे। जरूरी नहीं है हर वक्त सिर्फ मोबाइल खरीदने वाला है, हो सकता है कभी कोई एक छोटी खरीदारी करने के लिए बंदा है, सिर्फ चार्जिंग केबल खरीदने के लिए आए, लेकिन उसका चार्जिंग केबल खरीदने का एक्सपीरियंस इतना स्मूथ हो, जब प्रोडक्ट उसको मिले तो इतनी अच्छी क्वालिटी का हो कि अब जब उसको मोबाइल खरीदना हो तो भी वो आप ही के पास है। सो ये है बिजनेस मॉडल कैनवस। अगर इसके ऊपर काम कर लिया और डिटेल में काम कर लिया तो यू विल बी through to the level of, from the level of planning and towards the level of execution, जहां आप अगले लम्हे से एग्जीक्यूशन शुरू कर सकते। कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन इस कैनवस को लेकर? क्विकली चैट में बता दो जरा। Shabash, do we have any questions, any confusions? Okay, Rida, thank you. कस्टमर सेगमेंट्स क्या था यार, कि ये आइडेंटिफाई करना कि मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ दुकान पे या ऑनलाइन, उसकी मार्केट कौन है, खवातीन खरीदेंगे, मर्द खरीदेंगे, किस एज ग्रुप के लोग खरीदेंगे, बच्चे खरीदेंगे, बूढ़े खरीदेंगे, डेमोग्राफिकली क्या चांसेस है, किस शहर के लोग ज्यादा खरीदेंगे, पिशावर के, हुंजा के या कराची लाहौर इस्लामाबाद के। सो कस्टमर सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करना कि मेरी इवेंचुअली मेरा कस्टमर कौन है, किसने खरीदना है मुझसे। दैट्स कस्टमर सेगमेंट।
Any other question? कोई confusion? Okay, so I am assuming के कोई questions या कोई सवालात नहीं है. What I'm going to do is that we have come to the end of it. A value proposition यार कि आप other than the main product or the service that we're selling, आप और क्या दे रहे हैं customer को, क्या कैसे value add कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं other than अगर कोई customer आपसे phone खरीद रहा है तो phone के साथ साथ आप और क्या चीज दे रहे हैं जो कस्टमर के लिए फायदेमंद हो सकती है. What I'm going to do is that I'm going to leave my email ID and contact number है. फोन कर रहे हो अगर तो करने से पहले प्लीज मैसेज कर लीजिएगा. I do not usually pick up phone from unknown numbers. अगर मैसेज का रिप्लाई करने में देरी हो रही हो तो माजरत कर दीजिएगा. The best way to reach to me is of course emails and WhatsApp messages. देर से सही, but I'm going to make sure that I'm responding to you. If there are any questions, कहीं कोई confusion है, कहीं कोई support चाहिए, please feel free to reach out. And thank you very much for being here. I had a ball of a time, और I hope this was meaningful for you. और यहाँ से जो कुछ भी हमारी गुफ्तगू हुई है उसका 10% भी अगर implement हो जाए तो I'm sure it's going to help you immensely. Thank you very much. I'm going to sign out, and Rehan has been asking you to mark your attendances and to give the feedback on the given link. Please do so ताकि उनके लिए आसानी बन जाए. Thank you very much. Take good care of everybody. Thank you so much, Uzair, for conducting an amazing session. And please, participants, mark your attendance and do share your feedback on the given links. Thank you so much, everyone, for being here. I hope you apply the learnings in near future. Also, those who are asking for the recording, we will be sharing the recording with those who will be marking their attendance. So, आपकी जो email address हमें मिलेंगी, हम उसी पे आपको recording share करेंगे. So, please make sure you mark your attendance.